Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Good morning. Welcome you all in this special session that is to be conducted on CSS preparation or other competitive examinations. Today we are very lucky that have a very distinguished and very we can call it like an expert in this arena of CSS, PSS preparation. In a short time, I'm going to introduce you with this gentleman. But before I proceed with this introduction, and later I will hand over this session to Sir Ayaz Saab, just let me put some facts before you so that you will be involved in this discussion properly. Well, you all know that this session is especially conducted for the students of criminology, particularly those who has passed out or still they are in the process of this academic. So do you know that we had a long journey. Being a criminologist, we had a long journey of ups and downs. Okay. In initial phases, our degree or this field has faced so many challenges regarding the job prospectus, job scope. Many of our students they struggle a lot regarding hunting a job. Okay. But at this point of time, I'm quite satisfied that by and large, if we talk about that, we have on a right track. Our students are now getting proper opportunities, and the system has started accepting and recognizing criminology as an emerging and a dynamic discipline. So that is something that is, I think I'm proud of it, and I'm proud of on all of you. But having said that, still there's a lot to be done. Because what I have felt being your teacher, what I have felt that still our students they have not utilized their potential as they should actually. Okay, the reason may be so many. One reason may be that we have not still believing on our abilities. The other reason may be because about this current socio-economic conditions. We just want to get job, जो भी हमें job मिलती है. But what I concluded here and what I come to know here that I think you should all have should have a spark to get maximum. सुना होगा आपने the sky is the limit. Okay. So for that you need to work hard. Not like that you have just completed your degree of criminology like BAS or master and eventually you just end up being ASI inspector or some other like in a teaching profession. So you think a lot. You think of bigger than that. Okay, and you have potential. Being a criminologist, I know that you all have a great potential, and I think I have no doubt on your potential. But the problem is just that we have to utilize our potential on a right direction, on a right track, so that we can actually absolutely इसका आपका अपना नाम नहीं होगा, but you can आपके साथ आपके department आपकी field का नाम होगा. So I want my students they should have this ability and this temperament. They should go for competitive examinations like CSS, PSS. Okay, but to achieve that goal, naturally we want a right track. We want a track that lead us to success. We want a help and guideline from the expert and professionals. Okay. So this is basically this is the aim that make us to believe that and that has make us to conduct this session that to give you opportunity to give you a right track so that सिर्फ आप अपने ही तौर पर कोई एफर्ट नहीं करें बल्कि यू हैव टू इन्वॉल्व और आप उन एक्सपर्ट के साथ मिलके अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें जो आपको गाइड कर सकते हो एंड दोज हैव द एबिलिटी to work to be as your mentors to guide you throughout this ups and downs of this journey which is not quite easy and otherwise. Okay, so in this regard we have, as I just mentioned in early in intro, we have a very respectable personality, a person who is a thoroughly professional, a very good friend of mine, and he's running an academy from last 10 years, if I'm not wrong.
and that and, he, and I personally know that there are so many students, parents like you, who has eventually end up through this guideline of this gentleman, and they are now serving on a very responsible position. Okay, so I think that is a great work and a great credit to this gentleman, I think. Okay, so today we have uh, Sir Ayaz Hussain Mashuri Saab. He's the director of Paragon Academy that is in Hyderabad. Okay, and he basically belongs to Larkana, district Larkana, and he's a long journey basically, because I think he can become your true inspiration basically if you follow the footsteps and footprints of Ayaz Saab. Naturally, the journey of PSS, PCS, but this cannot only be a dream. You can actually convert this dream into reality, basically. Okay. So without wasting much time, I will really hand over the proceedings to Saraya Saab. Further, he will tell you about his journey and about the CSS and PCS and how you can easily crack and how to get maximum out of this examination. Okay, so sir, Saraya Saab, please. Thank you very much, Haider Saab. I'm lucky to be your friend. Thank you. And thank you for your offer to be your student. Inshallah, I will be your student in future. Inshallah, Doing MSc or MPhil in criminology, right? Inshallah. Because criminology has a lot of potential in future. Many people do not know about this. And thank you very much, dear future criminologists, for having me online for this webinar. So, सर ने जैसे कहा कि मैं अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, तो मुझे जलील मानिकपुरी एक उर्दू के शायर हैं, उसका एक मशहूर शेर याद आ रहा है कि ज़िंदगी क्या जो बसर हो चैन से, ज़िंदगी क्या जो बसर हो चैन से, दिल में थोड़ी सी तमन्ना चाहिए। तो यही ज़िंदगी का सफ़र होता है, आप लोगों को तमन्ना लेके चलती है आगे, आरज़ू लेके चलती है। अगर दिल में से तमन्ना, आरज़ू निकाल दें तो आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, ठीक है, खामोश बैठ जाते हैं विदाउट एनी एक्टिविटी। तो यही तमन्ना थी जो मेरी ज़िंदगी का सफ़र बनी, ठीक है। तो उसी से मैं थोड़ा शुरू करूँगा। ब्रीफली आई विल ट्राई कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दूँ, जिससे आपको थोड़ी-सी इंस्पिरेशन मिल जाए, ठीक है। वो ये है कि देखें, मैंने इंटरमीडिएट जो की थी, वो मैंने मेडिकल में की थी, बिकॉज माई फादर ड्रीम्ड कि मैं डॉक्टर बनूं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने माइंड बना लिया था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, राइट। तो फिर उसमें क्या हुआ कि माई फ्यूचर वॉज वेग, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। एज आई कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट, और मैंने अबू को जवाब दे दिया कि मुझे कोई टेस्ट नहीं देनी, मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना। तो देन आई वॉज लुकिंग फॉर माई कैरियर चॉइस कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो जब तक मैंने बीकॉम में एडमिशन ले ली थी कॉमर्स कॉलेज लारखाना में, एफिलिएटेड विद शालती यूनिवर्सिटी खैरपुर। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, अबू तो नाराज थे उस वक्त, क्योंकि अबू का जो ड्रीम था वो अभी पूरा नहीं हो रहा था। तो देन आफ्टर 3-4 मंथ्स व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, तो अबू ने कहा कि चलो भाई, अगर तुम सीएसएस नहीं कर रहे, अपना डॉक्टर नहीं बन रहे, तो सीएसएस कर दो। तो दिस वाज अनदर ड्रीम जो अबू ने मेरे लिए देखा। तो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ चांस कि मैं अपने बाबा को खुश कर सकूं किसी न किसी वे में, क्योंकि मैंने पहले उसे नाराज किया हुआ था, ठीक। तो इसमें फिर हुआ क्या कि मैंने अपना जो है इस ड्रीम को, अबू के ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया। देखो, ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये मोटिवेशन मैं आपको कोशिश करूंगा आपको मोटिवेशनल लेक्चर देने के भी एट द एंड ऑफ द सेशन या इसके बीच में ही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो मोटिवेशन होती है ये इंटरनल होती है, ठीक है। उसका काज कोई ना कोई एक्सटर्नल जरूर होता है, लेकिन मोटिवेशन इंटरनल होती है। तो अब्बू ने वो काज क्रिएट किया मेरे लिए, और फिर मुझे याद है उस वक्त मैंने एक सिंधी का शेर कहा था, इफ यू आर सिंधी स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर, आई गेस, सिंधी स्पीकिंग। तो मैंने एक शेर उस वक्त याद अबू के लिए कि ही अयास कंहिंजी तमन्ना जे करे, ही अयास कंहिंजी तमन्ना जे करे, हर तमन्ना पंहिंजी थो मारण घुरे। तो यही मेरी तमन्ना का सफर था जो मानिकपुरी के शेर से मैंने आपको बताया। तो यहाँ से मैंने अपना सफर स्टार्ट किया, और मैं फिर लाहौर गया, फिर कराची गया, लारकाना में पढ़ा, हैदराबाद में पढ़ा। तो आई डिडंट स्टॉप एनीवेयर, क्योंकि मैंने अबू के ख्वाब को अपना ख्वाब बना लिया कि मुझे सीएसएस पास करनी है।
और अबू ने ये भी ख्वाहिश की थी कि आपको मिनिमम एज में CSS पास करनी है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, मैं जो अपना ये तैयारी शुरू कर दी मैंने, और मेरे एक अच्छे दोस्त थे, हैदराबाद में 2010 में मैं आया था, और मेरे एक अच्छे दोस्त बने, वो मेरे भाई भी हैं, वो आपके डिपार्टमेंट का पार्ट रह चुके हैं, ठीक है, सैयद नवीद शाह। तो उसकी कंपनी में मैंने बहुत सीखा, और हम दोनों ने इकट्ठे तैयारी करना शुरू की थी, ठीक है। तो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह ही सेटल समवेयर, वो अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं कस्टम्स में, और बहुत सारी जॉब्स पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कुछ छोड़ चुका है। तो अगेन आप लोगों को भी, जैसे सर ने कहा कि कोई स्काई इज द लिमिट, सो डोंट थिंक अबाउट सम अदर पोस्ट लाइक एएसआई बनना है, ये बनना है, वो बनना है। वो नहीं कहते कि आसमान से गिरा खजूर पे जा अटका। तो भाई आप अगर खजूर से ही गिरेंगे तो कहाँ पे गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे ना। तो इसी वजह से थिंक बिगर, ज्यादा बड़ा सोचें, आसमान का सोचें, उसके बाद फिर लिमिट देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने वो सफर शुरू किया, और 2011 में मेरी एज हो रही थी 21 साल, जो मिनिमम एज होती है CSS की। आई विल बी गाइडिंग यू अबाउट बेसिक्स ऑफ CSS लेटर ऑन, राइट। तो अबू का ड्रीम था कि इनिशियल ईयर में ही आपको पास कर दिए हैं, तो आई ट्राइड माय बेस्ट, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, और 2011 में मैंने फॉर्म भर दिया एंड आई अपीयर्ड, और 2011 में ही आई क्वालिफाइड CSS इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई वाज ओनली 21 इयर्स ओल्ड। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल, इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम। जितना आप ज्यादा ड्रीम रखते हैं उतनी मोटिवेशन होती है, और उसके लिए अगर उतनी मेहनत करते हैं तो कहीं पे भी आपका ख्वाब नहीं जाता। वेल थोड़ा सा बताता चलूं कि उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरी एलोकेशन ना हुई। एलोकेशन आपको पता है, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसे सिंध की एक पर्टिकुलर कोटा होती है जिसमें मेरी मेरिट नहीं आई। तो आई वाज नॉट एलोकेटेड डिस्पाइट आई क्वालिफाइड रिटन एंड इंटरव्यू बोथ, राइट। चलो, बट आई वाज सेटिस्फाइड। अभी बंदा एक डिप्रेस हो जाए, सोचे कि यार मैंने इतनी मेहनत की, पहला अटेम्प्ट पास किया, और अल्लाह ताला ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो डिस्पाइट थिंकिंग ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स, आई वाज थिंकिंग कि भाई अभी मेरे पास 9 साल और पड़े हुए हैं, मतलब 7 साल और पड़े हुए हैं, ठीक है। और अपना मैंने पहले अटेम्प्ट में पास किया, तो इंशाल्लाह दूसरे में पास हो जाऊंगा। दिस इज पॉजिटिव थिंग। तो लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स दैट विल बी हेल्पिंग यू इन योर करियर। अच्छा, तो फिर मैंने 2012 तो एग्जाम नहीं दिया हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। फिर 2013 में अगेन आई अपीयर्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट पास रिटन। दिस वाज अ शॉक फॉर मी एंड शॉक फॉर माय पेरेंट्स एज वेल। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है कि इवन 2010 का पाकिस्तान का टॉपर था, और 2011 जिसमें मैंने रिटन इंटरव्यू पास किया था, वो 11 की रिटर्न में फेल था। तो इट हैपेंस, राइट। वेल ऐसे में मैं कुछ मार्क्स से फेल हो गया, एंड अबू नाराज थे, एंड ही वाज थिंकिंग कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बन गया था, और तैयारी करना मैंने छोड़ दी थी। बट इट वाज लाइक नॉट लाइक दैट केस। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली हर साल ऐसे तो डिफरेंट अटेम्प्ट करना होता है। तो उस वक्त आपसे आपकी अपना आपका दिमाग क्या काम कर रहा है पेपर में, एग्जाम हॉल में, ठीक है, और आप कैसे जस्टिस कर पा रहे हैं क्वेश्चन के साथ या नहीं कर पा रहे। तो हमें अपनी गलती भी माननी चाहिए। तो होपफुली मैंने कोई मिस्टेक्स की होंगी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। वेल उसके बाद अभी मुझे दोस्त और ये सारे मशवरे दे रहे थे कि भाई फिलहाल वेट करो, अभी 2-3 साल के बाद CSL देना। मैंने कहा वाई सो? उन्होंने कहा भाई देखो, अभी आपके पास एज पड़ी हुई है, 2 अटेम्प्ट आपके जाया हो चुके हैं, सिर्फ एक अटेम्प्ट रहता है, तो वाई यू आर टेकिंग रिस्क टू लूज दैट अटेम्प्ट, राइट। और मैंने उनको कहा भाई देखो, CSS या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक आपको लैंग्वेज चाहिए, मतलब राइटिंग स्किल्स चाहिए, ठीक है, बेसिक राइटिंग स्किल्स वाले, ठीक है, कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए कि यू कैन कम्युनिकेट योर आइडियाज टू द एग्जामिनर। मतलब, और मैंने सोचा कि भाई मैंने पहले अटेम्प्ट में ही पास किया, इसका मतलब मेरे पास वो कम्युनिकेशन स्किल है। नंबर 2, पर्टिकुलर नॉलेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर सिलेबस, राइट। वो जो सिलेबस CSS का हर सब्जेक्ट का था, जो मैंने आप किए थे या जो कंपलसरी थे, उनके बारे में मैंने पढ़ चुका था मैं 2 अटेम्प्ट्स के लिए। तो मैंने कहा यार वो भी मेरे पास है। एंड थर्ड चीज है टेक्निकल चीजें जो होती हैं, कि पेपर टेक्निक्स क्या होती हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, स्कोर टेक्निक्स क्या होती हैं, वो मुझे पता है। तो व्हाई शुड आई वेट? और मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी चीज को आप जिंदगी ना समझ लें, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये CSS मुझसे ना हुआ तो आई विल बी लुकिंग फॉर अनदर थिंग, और बेटर भी हो सकती है उससे। तो मुझे अटेम्प्ट देना है, और 24th एज में, मतलब मैं
24 ईयर में जब मैं 24 साल का था तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया 2014 में, एंड अगेन आई फेल। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? अगेन तो मैंने पहले अटेम्प्ट पास किया, 2 फेल हो गए, और उसमें मैं सिर्फ कंपोजिशन में, इंग्लिश बेसिक कंपोजिशन में 2 मार्क्स से रह गया, एंड आई हैड अ गुड स्कोर, 682 स्कोर था मेरा रिटन में। आई कुड हैव बीन अमंग द टॉप 5 इन सिंध इफ आई कुड क्वालिफाइड, राइट? वेल इट वाज ऑल अबाउट माय लक, तो इट वाज गेम ओवर फॉर मी, राइट? अब लोग क्या सोचते हैं, सारे लोग, इवन आपके रिलेटिव्स के और आपके फ्रेंड्स के, आपको जो लोग पहचानते हैं, आप जहाँ काम करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको फिर डिस्करेज करते हैं। लोग कहते हैं भाई तुम फेल हो गए, यू आर आउट ऑफ द गेम, और ऐसे रवैये आप देखते रहते हैं। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपना पहले अटेम्प्ट से पहले ही इतनी मेहनत कर चुका था कि 2010 से मैं CSS की अकेडमीज में पढ़ाना शुरू कर चुका था। मतलब बिफोर माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्टार्टेड टीचिंग CSS एस्पायरेंट्स, ठीक है? और उसके बाद तो अटेम्प्ट पास किया, तो उसके बाद पढ़ाता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 सालों में पढ़ाता रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। वेल सो अब मुझे क्या करना है, और मैं आपको ये बता दूं कि इस बीच में जब मेरे CSS के अटेम्प्ट थे, आई डिडंट अपीयर इन एनी अदर एग्जाम। अगर मैं होता तो शायद कहीं किसी और जगह पे फिट हो जाता, बट एक्चुअली मैंने कहा कि भाई पहले दूसरे एग्जाम्स के बाद में भी एज आ जाएगी, और अभी तो मेरा सारा फोकस CSS पे होना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने दूसरों को अवॉइड किया। एंड आई रिमेम्बर मेरे बड़े भाई थे फयाज मशहूरी, उन्होंने एक मरतबा मैंने किसी जॉब में अप्लाई किया हुआ था, कोई नेवी की जॉब थी, कोई 12 ग्रेड की या 15 ग्रेड की थी। सो व्हेन आई अप्लाइड फॉर दैट, और मेरे भाई को पता चला तो वो बड़े नाराज हुए थे। वो कह रहा था कि भाई डोंट यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पे तुम्हें भरोसा नहीं है? वी आर सपोर्टिंग यू, व्हाई यू आर ट्राइंग फॉर अदर जॉब्स, फोकस ऑन योर मेन एम, मेन गोल। तो इस तरीके से मैंने किसी एग्जाम में इससे पहले अपीयर नहीं हुआ, तो उसके बाद में अपीयर होना शुरू हो गया। वेल यहाँ तक तो गेम ओवर थी, लेकिन 2014 जब मैं फॉर्म भरे 14 में फॉर्म भर रहे थे, उससे पहले 2013 में ही CCE कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SPSC का जो एग्जाम होता है, जैसे PCS नॉर्मली आप कहते हैं, उसके फॉर्म भर चुके थे, वो मैंने भर दिए। तो उसके बाद में जॉब्स के लिए अप्लाई करना मैंने शुरू कर दिया 2014 के बाद, जब तक PCS का वो एग्जाम अनाउंस हो। तो मुझे याद है कि 2014 के बाद मुझे जो है NGO में एक जॉब ऑफर मिली थी। वो ऑफर अच्छी थी, एट दैट टाइम 50,000 वो पे भी ऑफर कर रहे थे, और टीम लीडर कर रहे थे एक प्रोजेक्ट का अपना खैरपुर नासन शाह में, आई रिमेम्बर। और उसके अलावा गाड़ी, मोबाइल, इंटरनेट और टीम मेंबर सारी चीजें मिल रही थी। बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश, एक्चुअली मैं वहाँ पे गया और मैंने उनकी रिपोर्ट्स को थोड़ा पढ़ा और उनको रिपोर्ट एडिट करके मैंने दी, तो दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम मी, और उन्होंने कहा कि भाई आप तो बड़े काम किए, आप इधर आ जाएं। वेल आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब आप ये समझ लें कि आपको अपने गोल से दूर कर सकती है, बिकॉज देन यू डोंट हैव इनफ टाइम। और बड़े मकसद के लिए छोटे जो मकसद होते हैं आप उनको कुर्बान कर सकते हैं, या छोटी खुशियां कुर्बान कर सकते हैं। फिर और जब ये मैं सोच ही रहा था, तो उस वक्त PCS की स्क्रीनिंग अनाउंस हो गई। जब PCS की स्क्रीनिंग अनाउंस हो गई, तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। अगर मैंने फिलहाल अपने पैसों के लिए, छोटी सी खुशी के लिए, जॉब के लिए अपना हाँ कर दी, तो उसके बाद मेरी PCS भी चली जाएगी, क्योंकि मेरा ब्यूरोक्रेट बनना ड्रीम था, और ब्यूरोक्रेट बनना वहां से पूरा हो सकता है, PCS से, NGO से नहीं हो सकता। तो वेल उसके बाद मैंने स्क्रीनिंग PCS में फिर 3 पार्ट्स होते हैं, स्क्रीनिंग, रिटन एंड इंटरव्यू। मैंने स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दी, और मोर देन 50,000 पीपल अप्लाइड फॉर दैट, राइट, PCS 2013 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चॉइस ग्रुप था CSS में भी, वो था DMG जिसे कहते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, और आजकल उसे PAS कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट, CSS में, और यहाँ पे डायरेक्ट उसे असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, तो रेवेन्यू ग्रुप में। तो मेरा ड्रीम वही था, CSS में तो रह गया। अब PCS में भी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आ गई 45 उस 2013 के एग्जाम में, तो उसमें 45 में से रूरल डोमिसाइल पे थी 27। तो नाउ
मुझे ये देखना कि आउट ऑफ 50,000 मुझे 27 टॉप 27 में आना है ताकि मेरा ड्रीम कंप्लीट हो। वैसे दूसरी भी ब्यूरोक्रेसी की जॉब थी, लाइक सेक्शन ऑफिसर है, आपका मुख्तियारकार था और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, बहुत सारी जॉब थी, राइट। लेकिन आई वाज ड्रीमिंग फॉर बिकमिंग असिस्टेंट कमिश्नर। तो 50,000 में से आई वाज एइंग फॉर 27 नंबर। वेल, स्क्रीनिंग पास हो गई और उसमें से सिर्फ 800 प्लस लोग पास हुए। नॉट इवन अ सिंगल 1000 कुड पास स्क्रीनिंग। वेल, उसके बाद कुछ एरर्स थी उनके क्वेश्चन पेपर में और उन्होंने 9 मार्क्स ग्रेस दी थी सारे 50,000 प्लस लोगों को। तो फिर ये जो नंबर ऑफ पासिंग हुआ वो 3000 प्लस था लोगों का। तो वेल, अब 50,000 में से आई हैड टू फाइट विद 3000 मोर देन 3000 पीपल फॉर दीस 27 सीट्स। उनमें से कुछ मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, ऐसी। तो रिटर्न हुआ। रिटर्न में अपना अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ पीसीएस एज वेल, जैसे सीएसएस में पहला अटेम्प्ट था। और रिटर्न में पास हो गया। उसके बाद रिटर्न में 664 लोग पास हुए थे आउट ऑफ 3000 प्लस। और अब मुझे 664 में से पहले तो छोटा टारगेट था 227 और 223 सीट्स, मतलब जितनी सीट्स थी टोटल उसमें आना है ताकि बंदे को नौकरी मिल जाए, एलोकेशन हो जाए। अच्छा, उसके बाद मेन गोल था कि भाई 27 में आना है। तो जब इंटरव्यू की रिजल्ट आई, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन सिंध रूरल एंड थर्ड ओवरऑल। तो माय ड्रीम फुलफिल्ड, आई गॉट एलोकेशन एज असिस्टेंट कमिश्नर। और फिर मेडिकल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है वो सारी चीजें हो गई। और फिर एक कहते हैं ना, खुशी कुछ टेम्पररी भी हो जाती है लेकिन उनसे परेशान नहीं होता। तो ये खुशी भी मेरे लिए टेम्पररी रही, क्योंकि आपको पता है 3 सीएसएस के अटेम्प्ट जाया हो जाने के बाद बंदे बहुत सारे डिप्रेस हो जाते हैं। तो डिप्रेस नहीं होना जिंदगी में, हमेशा पॉजिटिव साइड देखें, आगे चांसेस देखें, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें। तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के हिसाब से ये एग्जाम को नल एंड वाइड किया गया ऑन डिफरेंट चार्जेस। एक अहम मेन चार्ज ये थी कि जो इंटरव्यूअर था, जो पैनल थे, उनके ईयर्स कंप्लीट नहीं थे सर्विस के, जो रिक्वायर्ड होते हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ एसपीएससी और अ चेयरमैन। तो भाई गलती उनकी, और हम सारे जो 227 और 223 पास हुए थे सारों को हटा दिया नौकरी से। तो सोचो, आपको असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफर ऑर्डर मिला हुआ और आपको कहें भाई ये मजाक थी, वापस दे दें। तो इस तरीके से जिंदगी ने ये भी किया मेरे साथ। वेल, फिर मैंने कहा यार क्या मसला है, नल एंड वाइड वाइज का मतलब है दे आर आस्किंग के दोबारा तो अपीयर होना है ना। टाइमली दुख जरूर होता है, इट्स वेरी नेचुरल, राइट। लेकिन मतलब उस दुख के साथ बैठ नहीं जाना, तो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, दोबारा उन्होंने कहा रिटर्न दो और इंटरव्यू दो। दोबारा फिर रिटर्न दी और दोबारा रिटर्न में, और मेरा उसमें रिटर्न स्कोर था 611 इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इंटरव्यू था 178। तो पीसीएस में 600 प्लस कोई टोटल 8 या 10 लोग थे हम। अच्छा, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें भी मेरा 600 एग्जैक्ट स्कोर आया। और रिटर्न के हिसाब से आई वाज फॉलोइंग 17th नंबर इन टॉप अगेन। तो अगेन आई वाज सेटिस्फाइड कि भाई फिर असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे, 27 सीटें और मैं 17 नंबर पे आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा फिर एक और सीन हो गया, इंटरव्यू में मुझे इस मरतबा स्कोर कम मिला और मुझे एसी की सीट नहीं मिली, बट आई बिकम सेक्शन ऑफिसर, राइट। और 6 मेरिट थी सेक्शन ऑफिसर पे मेरी। वेल, जो नसीब में अगेन आई वाज, जो ड्रीम था वो एग्जैक्टली था ब्यूरोक्रेट बनना ना, सिविल सर्वेंट बनना, वो बन गया। और मेन ड्रीम था उसमें भी असिस्टेंट कमिश्नर बनना, वो थोड़ा सा रह गया अगेन। बट आई एक्सेप्टेड दिस ऑफर ऑफ बिकमिंग अ सेक्शन ऑफिसर, क्योंकि ये भी मेन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। वो रेवेन्यू वाली पोस्ट भी जाके आगे जाके अपना सेक्रेटरी बनते हैं, ये भी आगे जाके सेक्रेटरी बनते हैं। तो मैं सेक्शन ऑफिसर बन गया एंड आई सर्व्ड इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर मोर देन अ मंथ। एंड देन फिर मेरी जो पोस्टिंग वो हो गई अपना सीएम हाउस और सीएम सेक्रेटरीट कराची में, जहाँ पे आज भी मैं सर्व कर रहा हूँ, 1 साल हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि पीसीएस इससे पहले ऑलमोस्ट एवरेज आप देखें तो 5 सालों के बाद आ रही थी। 2008 में आई थी, उससे पहले 3 में आई थी और 13 में आई थी। लेकिन ये तो 13 का एग्जाम बार बार हो रहा था, इसी वजह से इसको रिजल्ट में इतना टाइम लग गया। और फिर ये 18 में एक नया एग्जाम इन्होंने अनाउंस किया। तो अभी मेरी एज थी, क्योंकि मैंने अर्ली एज में सीएसएस का अटेम्प्ट दे चुका था, अभी मेरी एज थी, तो आई अपीयर्ड अगेन इन 2018
मैंने उसका फॉर्म भर दिया, स्क्रीनिंग पास की, फिर मैंने क्योंकि अब क्यों अपीयर हुआ वो मैं आपको बता दूं, अगेन टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर। वेल तो फिर जो है मैंने रिटर्न पास किया, अगेन मेरा स्कोर 600 प्लस था, आई थिंक 619 था मेरा इस टाइम, और मेरी पोजीशन आई 27th राइट इन सिंध, और आई बिकम पीएमएस ऑफिसर। अभी इन्होंने थोड़ा नॉमेनक्लेचर चेंज किया था, असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर को मर्ज करके इन्होंने नाम दिया हुआ है पीएमएस ऑफिसर, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है, पीएमएस। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह माय ड्रीम कम ट्रू आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो पीसीएस मैंने ये तीसरी मरतबा भी पास कर दिया लगातार, और अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकम पीएमएस ऑफिसर, जिसमें अब मैं एसी भी बन सकता हूँ और सेक्शन ऑफिसर भी बन सकता हूँ, ठीक है। दिस वाज माय शॉर्ट जर्नी, और इनसे आपको सीखना है कि भाई कभी भी जो है थोड़ी सी नाकामी पे परेशान नहीं होना। जैसे आप किसी पेपर में थोड़ा सा फेल हो जाएं, बस कहते हैं कि भाई जिंदगी टूट गई, मैं टूट गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और अपनी करेज को फिर इकट्ठे करें और आगे चलें। हैदर साहब, दैट वाज अ शॉर्ट It's very discussion inspirational, very about. inspirational. I Thank you. think many of the students, they'll find the great step and footprints for follow Thank you, your sir. footstep. Thank We have thank only you, a sir. few, only few seconds away from this connection. This is a 40 Right, sir. minutes we have limit time period. So please, Right, sir. we all are requested please to join again, so that we can proceed with further session. Okay. So Okay, then, sir. okay. I think Thank you. in the next part, I think Ashok Saab, I think you are going to tell us about something about CSS or Right, PCS. sir. I shall start my presentation in which I will be guiding about CSS, basics of CSS, and then I will be giving a bit motivational lecture. Okay, so in the last session, we are having a interaction. We are having a question and answer session. So you can So write. hopefully, sir, screen share हो गई है. Yes, we can see. Yes. Okay. So dear future criminologists. So many of them So they are criminologist certified because certified criminologist. yeah, most of them are Okay. certified. Some of them they are still studying. Oh, okay. That's great. That's great. So Lashman Das, I think he is certified criminologist, or he is under process. But he is still studying. He is still studying for fourth Okay, year. okay, Yeah. okay. Okay. So let's start my presentation. It's all about competitive exams. Both I will be talking about CSS and PCS, right? जैसे हम CCE कहते हैं, combined competitive exam. और इनके बारे में एक चीज जो मुझे डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंट, वो है मिथ्स एंड रियलिटीज। कुछ स्टूडेंट के माइंड में और हमारी सोसाइटी में इन CSS और PCS के बारे में बड़ी सी मिथ्स चलती हैं जो हमें डिस्करेज करते रहते हैं लोग, और कुछ उनकी रियलिटीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो वो अपना बेसिक्स अबाउट CSS, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाए, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट, उनको स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर वन होता क्या है कि ये जो एग्जाम है ये 21 साल से, इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है 21 साल से 30 साल तक है, मतलब यू हैव अराउंड 10 इयर्स, राइट। 21 से 30 साल तक आप जो है वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक हो गया। और अटेम्प्ट्स टोटल इस एज में आपको 3 देने हैं, वो चाहे CSS हो या चाहे CCE हो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि दोनों हैं अभी आपके पास, 3 अटेम्प्ट उसके हैं, 3 अटेम्प्ट उसके हैं इस एज ग्रुप में। तो आप लोग जो भी 21 और 30 के बीच में आ रहे हैं और अपनी एज देख लेना कि अब क्या है, फिर देखिए कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट इवन इफ यू हैव वन अपॉर्चुनिटी, और वो वन अपॉर्चुनिटी भी आप अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं और पास कर सकते हैं, हैव फेथ इन योर एबिलिटी, फाइन। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन रिक्वायर्ड क्या होती है, ओनली 14 इयर्स एजुकेशन, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए जो 14 इयर्स एजुकेशन वाली हो, और 16 है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन 14 भी है तो वो चल सकता है, ठीक है। और मतलब ग्रेजुएशन। अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट्स और स्कोर क्या होता है CSS और PCS में। और आपको ये बता दूं, एजुकेशन देखो रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन, लेकिन लोगों ने CSS और PCS को जो माइंड में बिठाया हुआ है वो शायद समझते हैं कि ये PhD लेवल या उससे भी ज्यादा लेवल की होती है। तो भाई आप ग्रेजुएट बन रहे हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ लोग कर गए हैं, ठीक है, तो आप समझ लें कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम एंड यू कैन एस इट इजीली, राइट। तो सब्जेक्ट पे आता हूं, देखो CSS जो है वो टोटल एग्जाम 1500 मार्क्स का होता है, 1500 मार्क्स। उस 1500 मार्क्स में से अपना 1200 मार्क्स फॉर रिटन एंड
अपना 300 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। ये जो 1200 मार्क्स है, इंटरव्यू को तो फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि रिटर्न पास होगा तो फिर इंटरव्यू की बात होगी और मैं आपको गाइड कर लूंगा बाद में, ठीक है। बाकी आता है रिटर्न पे। ये जो रिटर्न है उसमें 1200 मार्क्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और मैं ये भी बता दूं 1200 मार्क्स का जो पासिंग मार्क्स है, जिसे हम एग्रीगेट कहते हैं सीएसएस में, फिलहाल मैं सीएसएस पे बात करता हूँ, बाद में पीसीएस पे आते हैं। तो 1200 मार्क्स में से जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 600। मींस यू ओनली नीड 50% मार्क्स इन दिस एग्जाम टू क्वालिफाई, ठीक हो गया। और ये 1200 मार्क्स डिवाइडेड हैं अपना कंपलसरी एंड ऑप्शनल 2 पार्ट्स में। कंपलसरी सब्जेक्ट सबको देने और वो 6 हैं, मतलब 600 मार्क्स के हैं। इंग्लिश एसे फॉर 100 मार्क्स, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स, एंड उसके बाद आपका आता है इस्लामियात 100 मार्क्स का, करंट अफेयर 100 मार्क्स का, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स का, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स का। ये 6 सब्जेक्ट हो गए 100 के और 600 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब मैं कुछ पॉजिटिव चीजें बताता हूँ कि भाई देखो, इवन आपके क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में पासिंग मार्क्स कितनी होती है किसी सब्जेक्ट में? 40, राइट। ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में जाएंगे तो उससे भी ऊपर है, आई थिंक 50 है, ठीक है। और इसको छोड़ो, अगर दूसरे डिपार्टमेंट की भी बात करें, इवन से यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट पे 60 पे पास होता है ग्रेजुएशन में भी, ठीक। तो देखें, इफ यू आर एबल टू टेक 40 स्कोर इन योर डिपार्टमेंट, राइट, और दूसरे भी ले रहे हैं, इससे ज्यादा भी ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीएसएस में कंपलसरी सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया उसमें पासिंग मार्क्स सिर्फ 40 हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ओनली 40 मार्क्स आर रिक्वायर्ड, तो यू कैन इजीली डू इट इंशाल्लाह, ठीक है। और फायदा बताता हूं कि इसके जो मैंने 3 लास्ट सब्जेक्ट बताया ना, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के कहा जाता है अपना जीके ग्रुप, जनरल साइंस ग्रुप, ठीक हो गया। अब देखें, इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपने 39 लिया, यू आर फेल। सब्जेक्ट सारे पास करने हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो यू आर फेल, यू आर आउट ऑफ द गेम, राइट। लेकिन एक फायदा ये है कि ये जीके ग्रुप है, ये इंडिविजुअल काउंट नहीं होते सब्जेक्ट इसके। मतलब 100 100 100 3 सब्जेक्ट हो गए, पासिंग मार्क्स है 40 40 40 इन ईच। तो 100 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रुप हो गया 300 मार्क्स का, और पासिंग मार्क्स 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 120। तो यू आर सपोज टू गेट 120 आउट ऑफ 300 एनी हाउ। ये पॉजिटिव चीज है, समझना। एनी हाउ कैसे? वैसे है कि एक सब्जेक्ट में फेल मतलब आप आउट ऑफ गेम, बट ऐसे होता है कि आपने सोचो पाकिस्तान में 30 लिया तो वैसे फेल हो गया ना, लेकिन स्टिल यू हैव चांस टू पास। 30 पाकिस्तान फेयर में लिया और उसके बाद आपने सोचो कि 70 ले लिया जनरल साइंस में, ठीक हो गया, या 60 ले लिया और 60 ले लिया करंट अफेयर में, कितने हो गए? 60 60 120 और 30 ये 150 हो गए। तो 120 से तो क्रॉस हो गए ना, यू आर पास। इवन यू फेल इन पाकिस्तान अफेयर, यू पास ओवरऑल इन जीके ग्रुप। ये तो एक सब्जेक्ट था। आप 2 सब्जेक्ट में भी जीके ग्रुप में से फेल होके फिर भी पास हो सकते हैं। मतलब करंट अफेयर में आपने 30 लिया, पाकिस्तान अफेयर में आपने 30 लिया, वैसे तो दोनों फेल थे, तो ये 30 30 हो गए 60, एंड यू आर टेकिंग 60 मार्क्स इन जनरल साइंस, तो 120 हो गए, यू आर पास। तो देखें, ये आसान चीजें बहुत सारे लोग नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप अफसर बन जाए, ठीक है, और आपको अफसर बनना है, उनको दिखाना है, ठीक। ये हो गया कंपलसरी। अब सर हैदर की एफर्ट्स हैं कि उन्होंने सीएसएस और पीसीएस में आपके क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट को इंक्लूड करा लिया है सिलेबस में। ये एक बड़ी सक्सेस है आप लोगों के लिए। तो अभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 600 मार्क्स रहती हैं उसमें आप अपना क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं 100 मार्क्स का, और आपने उसमें तो 3-4 साल पढ़ा हुआ है, तो यू कैन इजीली टेक मोर देन 80 स्कोर इन दैट सब्जेक्ट। और मैं आपको बताऊं, ये जो सीएसएस गेम है इसमें एक सब्जेक्ट ही आपको टॉपर बना सकता है, 1-2 सब्जेक्ट ही आपको टॉपर बना सकते हैं, या आपको आपके चॉइस ग्रुप दिला सकते हैं। भाई देखें, एवरेज स्कोर आता है दूसरे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सबका, 1 या 2 में ज्यादा स्कोर आ जाता है। आप वो स्कोर अपने क्रिमिनोलॉजी से लेके आए भाई, 80-90 स्कोर ले लें, 90 प्लस ले लें, तो ये जो 20 मार्क्स है ना, 20-30 मार्क्स, लोग 60 ले रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में, आप वहीं पे 80-90 ले रहे हैं, तो 20-30 मार्क्स बड़ी होती है। मैं आपको ये बता दूं, 5 मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट पे 30-40 का डिफरेंस भी आ जाता है। 30-40 मेरिट आप ऊपर नीचे हो सकते हैं सिर्फ 5 मार्क्स के डिफरेंस से। तो 30 मार्क्स अगर आपको ऐड हो जाए तो आप टॉपर्स में आ सकते हैं।
इधर इन सिंस टॉपर और इन फेडरल टॉपर, प्रोवाइडेड आपको दूसरा सब्जेक्ट में भी स्कोर है। समझ आ रही बात? तो इट्स गुड सक्सेस फॉर यू पीपल कि आपका क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट दोनों में आ गया है और दोनों में आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मुझे बहुत पसंद है। और अब तो मेरा अटेम्प्ट नहीं है, अदरवाइज मैं क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट कर लेता। और मैंने इससे ऐसे ही पढ़ा जरूर है थोड़ा बहुत, क्योंकि सोशियोलॉजी भी मैंने पढ़ी है तो उसमें पढ़ दिया था। अच्छा, अब पीसीएस के दूसरे सब्जेक्ट्स ऑप्शनल में डिस्कस नहीं कर पा रहा, ये बड़ा लेंथी डिस्कशन है। मोर देन 50 सब्जेक्ट्स सीएसएस के सिलेबस में मौजूद हैं और उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आई गेस देयर आर 7 ग्रुप्स और हर ग्रुप्स में कुछ सब्जेक्ट्स हैं और आपको कहा जाता है कि हर ग्रुप में से एक लिमिट दी जाती है कि इसमें से 100 मार्क्स के सब्जेक्ट लें, इसमें से 200 के लें और आपको 600 मार्क्स कंप्लीट होनी करनी चाहिए। ठीक है, एक और फायदा बताता हूँ, जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल्स में, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन है, लाइक पॉलिटिकल साइंस है, उसके पेपर 2 होते हैं 100 के, पार्ट 1 पार्ट 2। हर पार्ट में, अब आपको ये बता दूं कि जैसे कंपलसरी में 40 मार्क्स पे पास था और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में तो ये इंटरमीडिएट लेवल है। इंटरमीडिएट में आपको याद है पेपर कितने में पास होता था? 33 मार्क्स में ना। तो सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 33 मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो कितनी जबरदस्त बात है। ठीक है, और फायदा बताता हूं कि आईआर या पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो भी ग्रुप काउंट होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो इंडिविजुअली काउंट नहीं होते। वैसे 32 किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले रहे हैं, यू आर फेल इन ओवरऑल सीएसएस। बट अगर आईआर के पार्ट 1 में 00 ले लिया, पार्ट 2 में 66 ले लिया, क्योंकि 33 एंड 33 आप बोथ पार्ट इक्वल्स टू 66 आउट ऑफ 200। तो आउट ऑफ 200 66 आपने एक पार्ट में ले लिया और 00 दूसरे पार्ट में ले लिया, यू आर पास। तो ये भी पॉजिटिव चीज है। समझ आ गई बात? अब आते हैं थोड़ा पीसीएस पे। जो आपके जहन में सवाल आते जाए तो वो लिखते जाना, आखिर में मुझसे पूछ लेना। अब आपके लिए पॉजिटिव चीज ये है कि भाई पीसीएस जो है पहले हर 5 साल के बाद हो रही थी, अब वो हर साल हो रही है। लाइक सीएसएस वो रेगुलर हो चुकी है, या आपकी खुशनसीबी है। और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस सेम हो गया है। आप लकी पीपल है बहुत कि भाई उसका एग्जैक्टली सिलेबस फुल स्टॉप और कामा के साथ उन्होंने सीएसएस वाला सिलेबस रख लिया है। मतलब सीएसएस की तैयारी कर ली तो पीसीएस की हो गई, पीसीएस की तैयारी कर ली तो सीएसएस की हो गई। हमें दोनों एग्जाम्स की सेपरेटली तैयारी करनी पड़ती थी, उनकी नेचर डिफरेंट थी सारी सब्जेक्ट्स की, राइट? अच्छा, अब पीसीएस में है क्या क्योंकि ये प्रोविंशियल एग्जाम है, ठीक है, जिसे हम सीसी कहते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसमें कोई लैंग्वेज का कंपल्सरी सब्जेक्ट से जरूर रखते हैं। मिसाल देता हूं आपको कि आपको मेंशन करता हूं, इसके कंपल्सरी सब्जेक्ट 6 हैं, ठीक है। और वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स क्या हैं कि आपने एक इंग्लिश ऐसे देना है 100 मार्क्स का, जैसे सीएसएस में इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन देना है 100 मार्क्स का, ठीक है। और उसके अलावा आपको जनरल सिंधी और जनरल उर्दू आप करना है, वो भी 100 मार्क्स का है। ये एडिशन है, 300 मार्क्स हो गई। अब जो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर थी, इन दोनों को इन्होंने मर्ज करके 50-50 मार्क्स का एक ही पेपर 100 मार्क्स का बना दिया है। ये हो गए 4 सब्जेक्ट। करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर बन गया एक सब्जेक्ट। दूसरा वही आपका इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो ये 600 मार्क्स का पेपर हो गया कंपलसरी। और ऑप्शनल इसमें टोटल है 4, जिसमें आप क्रिमिनोलॉजी भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, 100 मार्क्स के 4 हैं और पूरा 1000 का रिटन का इसका एग्जाम हो गया। क्लियर? सो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया इनके सीएसएस के सब्जेक्ट्स का, और होपफुली आप लोगों ने समझ भी लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि ये मिथ्स और रियलिटीज क्या हैं, जो आप देखेंगे क्या है। लकी पीपल, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर लिया, इन 10 इयर्स 21 से 30 साल के एज में यू कैन नाउ अवेल 6 अटेम्प्ट्स, ठीक है। और प्रिपेयर फॉर सीएसएस, यू आर रेडी फॉर सीसी, ठीक है। तो यू आर लकी पीपल। अच्छा, और लेट नहीं करना, ये ना समझो कि भाई 6 अटेम्प्ट है, थोड़ा रेस्ट कर देते हैं, एक चला भी गया तो क्या मसला है। तो अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स द डोर, राइट? तो अपॉर्चुनिटी जैसे आ जाए भाई अवेल कर लें। अब बताता हूँ सीएसएस की मिथ्स क्या हैं, जो आप लोगों को दोस्त बताते रहे हैं, रिलेटिव्स बताते हैं, समाज में लोग बताते हैं। नंबर 1 मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट इन जेबिस कॉलेज लाकाना, वहाँ पे सीएसएस के एग्जाम हो रहे थे। तो हमारी सोच भी यही थी कि लोगों ने, क्योंकि यही मैसेज चलाया था, वो कह रहे थे कि भाई
जो CSS ये एग्जाम लोग दे रहे हैं ना, इनको सब कुछ आता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो हम बड़े परेशान होते थे, उनको हसरत से देखते थे कि भाई ये कैसे लोग हैं, राइट। तो ये एक बड़ी मिथ है कि वन शुड नो एवरीथिंग अंडर सन। भाई सब कुछ आपको आना चाहिए। इवन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSS, मुझसे भी ये सीन हुए थे और दूसरे लोगों के साथ भी होते हैं। रास्ते में आप जाएंगे, कहेंगे बा भला यो तो बुधायो पकोड़े के सिंधी में अंग्रेजी में छा चइबो आहे, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं। या कहते हैं कि भाई, मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। मेरे मरहूम अंकिल थे, वो गुजार गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो एक मरतबा में अपना CSS 11 के अटेम्प्ट के बाद या पहले तैयारी कर रहा था, और उसके बाद घर चक्कर पे गया था। लड़का ना अम्मी के साथ ऐसे बैठ के आलू छिल रहा था, ठीक है, हेल्प कर रहा था, गपशप कर रहा था। तो मेरे अंकल वो आए थे, वो कह रहे थे कि ये देखो आलू छिलने आते नहीं और CSS की तैयारी कर रहा है। तो समझ आ रही बात हो। इस तरीके से लोगों के माइंड में बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको क्या आना चाहिए उसमें मैं बाद में बताता हूँ, सेकंड स्लाइड में। बम्बास्टिक लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। भाई क्या बम फोड़ने हैं पेपर में, आपको बम्बास्टिक लैंग्वेज चाहिए? यू नीड वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। उसमें मैं डिस्कशन करता हूँ बाद में कि क्या चाहिए, रियलिटी क्या है। कोई बम्बास्टिक लैंग्वेज नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे यार मेरी लैंग्वेज तो इसे मार वाली है, मेरी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, इससे तो CSS नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लैंग्वेज भी ऐसी है, सबकी लैंग्वेज ऐसी होती है, ठीक है। उस पर आता हूँ कि क्या लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी मिथ है, डोंट गो फॉर इट, डोंट बिलीव इन इट। पासिंग स्कोर इज द हाईएस्ट, मैंने ये क्लियर कर दिया पहले ही आपको स्टार्ट में ही। लोगों को मिथ होती है भाई इसमें तो पास में कोई 70-80 स्कोर लेना चाहिए या तभी बंदा पास होगा, तो ये भी एक बड़ी मिथ है, ठीक है, जो क्लियर हो चुकी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन डू CSS। अब मुझे ये बताओ कि भाई मैंने 1 CSS पास किया है, और इन 6 अटेम्प्ट्स में से 3 CSS 3 PCS, मैंने 4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किए हैं, और थ्राइस PCS 3 दिए, तीनों पास किए हैं। तो I do believe I'm an average person, I'm not an extraordinary person, right? और सिंधी में जे चवंदा आहिनि त छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन खे सिंग लॻल हूंदा आहिनि छा मथे में? न हूंदा आहिनि, राइट। आई एम अ पर्सन लाइक यू। आप लोगों और मुझ में सिर्फ फर्क ये है कि मैंने पहले कर दिया, आप बाद में करेंगे। सो मोटिवेशन अपनी रखें, अपने आप में बिलीफ रखें। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट। चलो, और सबसे बड़ी मिथ जिसमें मैं आज डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो आपकी माइंड में होती है। आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुखा न थी दो, राइट। ये बड़ी मिथ है। इस मिथ को आज खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इस पर डिटेल में बाद में आता हूं। अच्छा, नाउ रियलिटी क्या है, हाउ इट इज डूएबल। इन चीजों को देखते हैं कि भाई एवरीथिंग अंडर सन नहीं है। स्पेसिफिक सिलेबस और सिलेबस दिया गया है। जैसे आप क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, हर सब्जेक्ट की एक आउटलाइन होती है। हर सब्जेक्ट में आप सिलेबस आउटलाइन दी जाती होती है, आपकी किताब में कंटेंट लिस्ट बनी होती है, वो भी पढ़ने होते हैं। इसमें भी ये जो 12 सब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं उसमें कंटेंट लिस्ट बनी हुई है, आपको उन्हीं में से पढ़ना है। भाई अगर मेरे ऑप्शनल्स में से सोचें पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे पॉलिटिकल साइंस आनी चाहिए। भाई मैंने IR लिया है, मुझे IR आनी चाहिए, और IR में भी जितने चैप्टर्स मेरे सिलेबस में मुझे वही आने चाहिए, दैट्स इनफ। क्लियर? उससे ज्यादा कोई मैंने PhD थोड़ी की है IR में। वो समझ लें कि जब इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, वो इतने सब्जेक्ट इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दे वांट के देयर शुड बी अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मास्टर्स करनी है तो जाके भाई MSc कर लें, मास्टर्स कर लें, PhD कर लें, MPhil कर लें उस सब्जेक्ट में। हमने यहाँ सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है ताकि दे नीड पीपल कि उनको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज इज अ टूल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज। भाई देखें, लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, राइट। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं उसको मतलब वो सेकेंडरी गोल जरूर हो सकता है कि खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन मुश्किल नहीं होना चाहिए। खूबसूरती और मुश्किल लैंग्वेज में फर्क है। मिसाल देता हूँ, आप कोई सी भी किताब पढ़ लें, कोई आर्टिकल पढ़ लें अखबार में, पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़े से वर्ड मुश्किल आते हैं, मुश्किल आते हैं, मुश्किल आते हैं, चलो एक वर्ड देख लिया डिक्शनरी में, दूसरा देख लिया, फिर तंग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं ना। तो मुझे बताएं, नुकसान आपका हुआ या रीडर का हुआ? एक्चुअली उस रीडर का नुकसान हुआ।
He wanted to convey his message. He wanted to say something to you people that he failed to convey. So language is to communicate your idea. The basic purpose is this. और बेसिक पर्पस सर्व ना हो और सिर्फ खूबसूरत हो तो वो किसी काम की खूबसूरती नहीं। तो मिसाल दूसरा देखते हैं, एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं आई कंकॉमिटेंट विथ माय फ्रेंड्स। अब ये कंकॉमिटेंट विथ का मतलब आप जारी बातें ना समझे होंगे। अब इस वर्ड का मतलब होता है अलॉन्ग विथ, इसका जिक्र करने की क्या जरूरत है भाई, इतना मुश्किल वर्ड यूज करने की क्या जरूरत है, और ये फेलियर मेरा होता अगर इसको मैं एक्सप्लेन ना करता। तो बी सिंपल इन योर कम्युनिकेशन, और पेपर में भी आपको एग्जामिनर को अपने आइडियाज बताने हैं, उसको कंफ्यूज नहीं करना। और एग्जामिनर भी हमारी तरह के इंसान है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, इट डजंट मीन कि उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद है भाई, उसको जीआरई की वो क्या पूरी याद होगी। तो बी सिंपल इन योर कम्युनिकेशन। बाकी खूबसूरत लैंग्वेज, सिंपलिसिटी में भी खूबसूरती होती है, वो तो एक बड़ा बहस है कि एक्सप्रेशन को कैसे खूबसूरत किया जाए। लैंग्वेज में भले आप अच्छे अच्छे वर्ड्स याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बी नेचुरल इन योर फ्लो ऑफ राइटिंग। क्लियर? अच्छा, पासिंग स्कोर इज इवन लोअर एज कंपेयर टू योर डिग्रीज रिक्वायर्ड स्कोर इन यूनिवर्सिटी आर एटलीस्ट एट पार, इक्वल है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो ये भी रियलिटी है। एवरेज पर्सन डू सीएसएस लाइक मी, आई बिलीव कि आई एम एवरेज पर्सन, राइट। अब आते हैं जो मेन चीज है जिसमें मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि आपके अंदर में एक मिथ है कि आई कांट डू इट। अब आपको बिलीव करना है कि यू कैन डू दिस एंड यू विल इंशाल्लाह, राइट। अब आते हैं इस पे, आई कांट डू इट होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। देखें, माइंड ब्लॉक्स होते हैं हमारे माइंड में, जिसे बिलीफ सिस्टम हम कहते हैं। वो कैसे बनते हैं कि आपने समाज में रॉन्ग रेफरेंसेस देखते हैं, रॉन्ग इंस्टेंसेस देखते हैं, वो इकट्ठे करते हैं, वो माइंड में इकट्ठे होते रहते हैं, इनकलकेट होते रहते हैं, फिर वो एक समझे सीमेंट की दीवार की तरह बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल बन जाता है। कैसे कि भाई देखो, फिलहाल तो दिन में 15 घंटे पढ़ता था, फेल हो गया यार, फिलहाल ने तो प्राइवेट स्कूलिंग की हुई है, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से आया हूँ, वो फेल हो गया तो मैं कैसे पास होऊंगा। यू आर टेकिंग रॉन्ग एग्जांपल्स, राइट। अच्छा, ऐसे तो भाई मैं भी गवर्नमेंट स्कूलिंग से पढ़ा हूँ, मैं कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। मेनी ऑफ यू पीपल विल बी वुड बी लकी कि आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे। आज तो आपको पता है केजी लेवल से बच्चे अंग्रेजी स्टार्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं जब छठी जमात में था तभी मैंने एबीसी पढ़ी थी, राइट। तो ये माइंड ब्लॉक्स, रॉन्ग रेफरेंसेस हमने खत्म करने हैं, हमने पॉजिटिव रेफरेंसेस इकट्ठे करने हैं, और ये पॉजिटिव रेफरेंसेस लगातार इकट्ठे करने हैं तभी, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम बेहतर हो। अब बताता हूं कैसे। आई कांट डू इट वाले एग्जांपल देखो, ये घोड़ा देख रहे हो, प्लास्टिक की चेयर के साथ बंधा हुआ है, नहीं भाग सकता। वो जब इंसानों को लेके भाग सकता है, गिरा सकता है, इस चेयर के साथ क्यों बंधा हुआ है, क्यों नहीं हिल रहा? रीजन इज दिस, उसने अपने माइंड में बिठा दिया है, बिलीफ सिस्टम कर दिया है कि किसी ने मुझे बांध लिया है, someone has tied with me, something is strong that I cannot break it। और ऐसा तो नहीं है, आप भी कहीं पे अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने माइंड में, अपने नेगेटिविटी के साथ अपने आप को बांध लिया कि मुझसे नहीं होगा, और वो नेगेटिविटी इज नथिंग बट दैट प्लास्टिक चेयर दैट यू कैन इजीली मूव, राइट। दूसरा मिसाल देखते हैं। अब मैं बताता हूं कि होता क्या है, जो सर्कस में हाथी के बच्चे को लेके आते हैं, तो देखें ट्रेन बच्चे को करते हैं, डायरेक्ट बड़ा हाथी नहीं लेके आते उसको ट्रेन करने के। हाथी का जब बच्चा लेके आते हैं उसको वो चेन से टाई कर देते हैं, बांध लेते हैं किसी चीज के साथ। तो हाथी का बच्चा जो है ना उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो जितनी उसकी ताकत होती है, हाथी के बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती जितनी बड़े हाथी में होती है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। लाजमी नहीं है कि वो अपना ये लोहे की चेन हो, वो रस्से के साथ उनसे रस्सी के साथ उसे बांध लेते हैं। वो तोड़ने की कोशिश करता है बट इट फेल्स, वो फेल हो जाता है। फिर इतना जोर लगाता है, इतना जोर लगाता है, इट माइट ब्लीड एज वेल, उनके पाँव में से खून भी निकलना शुरू हो जाता है, राइट। तो फिर उसके माइंड में बैठ जाता है उस बच्चे के, हाथी के बच्चे में, कि हाँ भाई मैंने ट्राई किया था, आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रेक इट बट आई कुडंट, इट्स टू स्ट्रांग टू ब्रेक, वो मेरी स्ट्रेंथ और मेरे पावर से ज्यादा है। अभी उसके माइंड में बैठ गया। अब यही हाथी बड़ा भी हो जाए, उसको रस्से से बांध ले,
एक नॉर्मल कपड़े से बांध लें वो नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसके माइंड में बैठ गया, क्योंकि उसके ये माइंड में बैठ गया कि भाई मुझसे ये नहीं टूटेगा। ठीक हो गया। दूसरा मिसाल देखते हैं। अब ये देखें, आई कैन डू इट वाले बताता हूँ, या आई कैन डू वाले मैंने बता दिए। ये एक बूढ़ा बंदा इतने मोटे हाथी को हाथ से उठा रहा है ऊपर। व्हाट इज दिस? वो बूढ़े बंदे में ताकत नहीं है, वो हाथी वीक है। तो ऐसे समझ लें ये जो नेगेटिविटी है वो ताकत, वो इतनी ताकतवर नहीं है। आप वीक हो चुके हैं, आपका बिलीफ वीक हो चुका है अपने आप में, उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, राइट? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई आई एम नॉट जीनियस, आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, हाउ आई कैन डू CSR, हाउ आई कैन एक्सील इन माय लाइफ, इन माय करियर, राइट? तो उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, पढ़ें। Everyone can be extraordinary and genius provided he puts his 100%. भाई जीनियस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो होते हैं जो अपनी लाइफ में किसी फील्ड में टाइम देते हैं, लगातार टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, 100% लगाते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस फील्ड में बन जाते हैं। ठीक है, ये देखें एक और चीज। लेकिन वो जो एक बंदा है वो अगर जीनियस भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है, तो एक फील्ड में होगा। रिमेंबर दिस, ही कैन नॉट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन एवरी फील्ड। वो एक फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो दूसरी फील्ड में बिलो एवरेज होगा या डल होगा। समझ आ रही बात? मिसाल देते हैं, यू कैन नॉट जज द स्ट्रेंथ ऑफ फिश बाय क्लाइंबिंग अ फिश ऑन ट्री। भाई ऐसे ना हो कि हम कहें भाई अगर मछली अच्छी चीज है और ताकतवर है, या मछली जो है के पास कोई ताकत है, तो वो दरख्त पे चढ़ के देखा है तो फिर पता लगेगा कि अच्छी मछली है या नहीं है। तो नहीं कहेंगे ना ऐसा। अच्छा, बांदर को कहते हैं जो दरख्तों पे चढ़ता है, उसे कहते हैं कि भाई पानी में तैरो, अंदर जाओ पानी के, तो नहीं करेगा ना। तो रिमेंबर दिस, हर बंदा किसी एक फील्ड में होगा। एक और मिसाल लेते हैं कि भाई अपना अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेके आए, शेक्सपियर को लेके आए, उसे कहें कि भाई हैदर अली साहब की तरह जो है ना, हमने क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर तो देके दिखाओ। भाई तो उनको नहीं पता ना क्रिमिनोलॉजी का, दे हैवंट वर्कड फॉर दैट। तो हर बंदे की एक अपनी फील्ड होती है, राइट? या उसे मैं कह दूं अपना अल्बर्ट आइंस्टाइन को भाई सिंधी लिटरेचर की हिस्ट्री पे कोई लेक्चर दे दो, ठीक है, तो नहीं देगा ना। तो एवरीवन इज अ जीनियस। और सोच लें आपके अंदर भी ऐसा जीनियस बंदा बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, उसमें सिर्फ उसको शार्पन करने की जरूरत है अपने माइंड को, और उसको निकालने की जरूरत है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उसके लिए मेहनत लगानी होगी। ठीक है, यू ऑल आर जीनियस। आगे चलते हैं। एक वो घोड़ा था जो प्लास्टिक की चेयर के साथ बंधा हुआ था, दूसरा ये घोड़ा भी है, देख लो। जॉकी कहते हैं ना, आई गेस, जो राइडर होते हैं हॉर्सेस के, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। देखिए हॉर्सेस तो उन्हें भी गिरा लेते हैं, वहां पे जो है एक हाथ जो है प्लास्टिक की चेयर के साथ बंधा हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ पे होता तो सारे बॉडी बिल्डर बैठ के सीएसएस कर रहे होंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, राइट, इन योर लाइफ। वो एक हाथी था, दूसरा ये हाथी है, पूरी बंदों की वैन गिरा रहा है। सो इस हाथी का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, उसका वीक था, राइट? अच्छा भाई, दूसरे लोगों को अपनी लाइफ लीड करने ना दे। हम कहते हैं ना, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग क्या सोचेंगे, अगर ये मैं सोचूं तो वो क्या सोचेंगे? लेट देम थिंक, उनकी मर्जी है, कुछ भी सोचें आपके बारे में, गलत सोचें, पॉजिटिव सोचें। आप अपने काम से काम रखें, आप अपना सोचें, लोगों को सोचने दो। ठीक है, तो लोगों की एक्चुअली जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं पे नेगेटिव एनर्जी आप में क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वीक कर रहे होते हैं। फिर आप ये बिलीव करते हैं आई कांट डू इट। और ये देखो, मैंने पिक्चर जो लगाई हुई है ना, इसमें घोड़े की आंखों पे आई कैप्स पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि वो घोड़ा जो सीधा सीधा चले, अगर वो साइड में देखेगा तो वो अपना डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने आई कैप डाले कि इधर चले। लोग भी आपको ऐसे ही चला रहे हैं,
लोग कह रहे हैं कि भाई सीएसएस नहीं करनी, तुमसे नहीं होगा, तुम तो नहीं कर पाओगे, बड़ी मुश्किल है। आपने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो भाई ये शक्ल्स खत्म करो, ये आई कैप्स उतार दो लोगों के आइडियाज के, ठीक है, अपने आप पे बिलीव करो। आगे चलें, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ इसी बात पे। बड़ी मशहूर स्टोरी है कि भाई ये जो फ्राक्स हैं, कुछ फ्राक्स जा रहे थे, उसमें से 2 फ्राग रास्ते में किसी पिट में या होल में गिर गए। वो बड़ा डीप होल था। तो जो ऊपर फ्राग थे वो परेशान भी थे, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई तुम नहीं निकल पाओगे, ये तो बड़ा डीप है। वो जो फ्राग थे, दे वर कंटिन्यूअसली ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, राइट, बट दे कुडंट। और वो फेल हो रहे थे, ऊपर नहीं चढ़ सके थे क्योंकि होल और पिट बड़ा डीप था। लेकिन ऊपर वाले फ्राग जो है ना, वो तो कह रहे भाई तुम तो अब मर जाओगे, इधर ही पड़े पड़े मर जाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, अब तो तुम निकल ही नहीं सकते, अब तो तेरा कुछ नहीं होगा, लाइक अब सच वर्ड्स वो कह रहे थे। उसमें से एक फ्राग ने, आप देख रहे हैं नीचे 2 पानी में फ्राग हैं, एक खामोश बैठा है, दूसरा ट्राई कर रहा है, जंप मारा है। जो एक फ्राग है जो पानी में बैठा हुआ है, वो उनकी बातों से सेटिस्फाई हो जाता है। वो कहता है हाँ बस अब मेरी मौत यहाँ पे लिखी हुई है, अब मैं मर जाऊंगा, आई कांट गो देयर, गो अपसाइड, राइट। लेकिन दूसरा फ्राग फिर भी ट्राई करता रहता है, वो बड़ा उसे डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं भाई इतनी एफर्ट्स क्यों लगा रहे हो, इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो, इतनी चोटें क्यों खा रहे हो, वैसे ही तुम्हें मरना है, मर जाओगे, सुकून से मर लो, ठीक है। तो अब ये रिलेट करना, सोसाइटी में लोग हमसे भी कुछ ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो एक फ्राग है जो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है, एक ने गिव अप कर दिया, दूसरा ट्राई कर रहा है, वो आफ्टर लॉन्ग मतलब बड़े वक्त के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद वो ऊपर चढ़ आता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो दूसरे फ्राग उसे देख रहे हैं कि यार ये कैसे निकल आया, और वो परेशान हो जाता है जो नीचे होता है। फिर पता चलता है कि वो जो चढ़ के आया ना फ्राग, वो डीप था, that could not hear the voices of the frog। जो ऊपर फ्राग खड़े हुए थे उनके आवाज ही नहीं सुन पा रहा था, तो वो उनके इशारों में से समझ रहा था शायद ये कह रहे हैं कि आ जाओ ऊपर चढ़ो ट्राई करो। समझ आ रही बात। तो भाई कभी कभी you have to be deep, you have to give deep ear to all negative voices, उस फ्राग की तरह, वरना आप नाकाम हो जाएंगे जिंदगी में। तो लोगों के वॉइसेस को इतना सीरियस ना लिया करें जो नेगेटिव वॉइसेस हैं, राइट। आगे चलते हैं भाई, थॉमस एडिसन की बात देख लें इसी बात पे। ये जब बच्चा था, स्कूल में से लौट रहा था, तो टीचर ने उसे लेटर दिया कि अपनी अम्मी को दे देना। उसने अपने अम्मी को लेटर दिया, अम्मी ने लेटर पढ़ा, आंखों में से आंसू निकल आए, और पूछा एडिसन ने कि अम्मी क्या लिखा हुआ है। उसने कहा कि टीचर ने कहा है कि तुम बड़े जीनियस हो, और तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल जो है ना, स्कूल में से कोई टीचर नहीं है, तुम बड़े जीनियस हो। वेल, एडिसन तो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा मोटिवेट हो जाता है। चलो आगे जाके उसकी मदर गुजर जाती है, मर जाती है, ठीक है। और जब ये साइंसदान बन जाता है, ठीक है, बल्ब की अपना इन्वेंशन कर लेता है, बहुत वक्त के बाद वो अपने अम्मी के रूम में जाता है, वहीं पे एक बॉक्स में उसे खत मिलता है। ये वही खत होता है जो बचपन में उसके टीचर ने उसको दिया था। और वो जब खत खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा स्टूपिड है, पागल है, उसका माइंड जो है इतना काम नहीं कर पा रहा, वो गेन नहीं कर पाएगा, हमारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है जो इसे पढ़ा सके। सी द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स। मतलब अगर पॉजिटिव वर्ड्स उस बच्चे ने सुन लिए तो वो साइंसदान बन गया, साइंटिस्ट बन गया। और अगर यही नेगेटिव वर्ड माँ उसे सुना देती ना, तो शायद वो ये साइंटिस्ट भी ना बन पाता। तो वर्ड्स डू अफेक्ट अवर लाइफ, अवर माइंड, अवर पर्सनालिटी। तो हमने पॉजिटिव वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, बाकी को एक से सुने दूसरे काम से निकाल दें। ठीक हो गया भाई। इफ शी कैन डू, व्हाई कांट यू। साइमा सलीम, द फर्स्ट ब्लाइंड सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, बगैर आंखों के वो सीएसएस पास कर सकती है। आपको तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी है यार, व्हाई कांट यू। तो दूसरा देखें, एक मैंने एग्जांपल पढ़ा हुआ था इंटरनेट से, अरुणिमा सिन्हा, इंडियन लड़की थी, ट्रेन पे जा रही थी,
तो कुछ रॉबर्स आए, उन्होंने देखा कि इसको गोल्ड चेन पहनी हुई है, दे आस्क्ड हिम कि भाई गोल्ड चेन दे दो, शी रिफ्यूज। उन्होंने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया, ट्रेन से धक्का दे दिया। दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसके शायद पाँव पे चढ़ गई थी वो ट्रेन, ठीक है, और पाँव पे जब वो ट्रेन चढ़ गई, उसे उसकी पूरी एक टांग टूट गई। आप देख रहे हैं फोटो में, उसकी एक टांग प्लास्टिक की है, टूटी हुई है। तो वो वहीं पड़ी हुई थी 2-3 दिन तक। तो वहीं उसने ये सोचा कि अब तो मुझे जो है ना माउंट एवरेस्ट चढ़ना है भाई। वैसे 2 टांग थी, कभी नहीं सोचा, अभी तो एक टांग है, कट गई है, अब वो सोच रही है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। सी द मोटिवेशन, राइट, सी द एटीट्यूड ऑफ लाइफ, राइट। आपको भी इस इसी तरीके का एटीट्यूड रखना है। ऐसे नहीं कि भाई एक पेपर में फेल हो गए, कम स्कोर हो गया, भाई मुझसे तो नहीं होगा, मेरी अंदर ठीक नहीं, मुझसे नहीं होगा। भाई तो ठीक कर लो ना, क्या मसला है उसमें, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वो क्लाइंबर के पास गई, जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास गई, उनको कहा कि भाई मुझे जो है ना, हाइकर्स कहते हैं शायद उसे कहा कि मुझे जो है ना गाइड कर लो कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। उसने उसकी हालत देख के कहा कि भाई बेटा तुम चढ़ चुकी हो, चढ़ी नहीं हो, तुम्हारी इस थॉट ने, तुम्हारे इस बिलीफ ने, मेंटल स्ट्रेंथ ने, मतलब ऐसे समझो कि तुम चढ़ चुकी हो। आई रियली सैल्यूट यू। लेकिन शी वाज सो अपना जिद्दी इतनी थी कि उसने कहा नहीं सर, मैं इन लफ्जों से खुश होने वाली नहीं हूँ, मुझे चढ़ना है, मुझे सिखाओ। तो मैं आपको बता दूं, वो लड़की ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट चढ़ी, बाकी सारी कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, वहां पे भी चढ़ी। लाइक किलिमंजारो अफ्रीका में, एल्ब्रस है यूरोप में, ठीक है, तो वो डिफरेंट पीक्स पे चढ़ी है। अब मुझे बताओ, एक टांग के साथ एक लड़की इतना मुश्किल काम कर रही है, माउंट एवरेस्ट और ये सारी माउंटेन पीक्स चढ़ रही है, आप सीरियसनेस नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं कर पाएंगे, राइट। कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने अंदर बिलीफ सिस्टम रखें, और आज से रखें। ये नहीं फिर कहेंगे सर देखेंगे, अभी तो एज पड़ी हुई है। सोचना है, आज ही सोचना है, ठीक है। मेरे लेक्चर के बाद सोचना शुरू कर दें और अपना प्लान बनाना शुरू कर दें कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। अच्छा, लेसन्स फ्रॉम पेंसिल। अगर आप लोगों के पास पेंसिल है तो जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वो तजुर्बा करते जाएं, फिर आपको कुछ मिसाल मिलेंगी। हैदर साहब, अगर आपके पास भी है तो आप वीडियो पे आके वो पेंसिल दिखा दें, इफ यू आर हियरिंग मी। जी सर। पेंसिल है सर आपके पास? पेन होगी सर। पेंसिल चाहिए सर? पेंसिल चाहिए। नहीं है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। एक्चुअली मेरे पास भी नहीं थी, मैंने देखा था, ठीक है। चलो ठीक है, चलो गो अहेड। हमारे पास 1 मिनट होगा, हाँ, वो है 1 मिनट, फिर डिस्कशन हो जाएगा, फिर थर्ड सेशन होगा, आखिरी सेशन होगा, तो उसमें फिर ज्वाइन ठीक हो गया करेंगे। सर, ठीक सर। ठीक है। लक्ष्मण के पास है, ठीक है। तो लक्ष्मण ठीक है, ये आप अपनी वीडियो ऑन कर लेना। तो सर ये 1 मिनट के बाद आए या अभी स्टार्ट कर लें, नहीं, हम कंटिन्यू करें? 1 मिनट हमारे पास है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा भले आप उनको और जनरल बातें बताएं, नेक्स्ट सेशन 1 मिनट के बाद हम ज्वाइन करेंगे, उसमें फिर आप उसको पिकअप करिए। ठीक है, चलो जब तक मुझे ये बताएं, आप लोगों में से जिन जिन के पास पेंसिल है वो वीडियो में आ जाए। देखिए ये सारी चीजें कोई मेरी अपनी इनोवेशन नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने भी कहीं से सीखी है, मैंने भी कहीं से पढ़ी है। इंटरनेट में भी बहुत सारी शयूं पयूं आहिनि, तव्हां उन्हनि मां मिसाल वठी करे सिखी सघो था, राइट। मसलो इहो आहे त असां इन्हनि शयुनि खे अवॉइड कंदा आहियूं, पढ़ंदा कोन आहियूं। स्क्रीन ते तव्हां चेक करो, ॾिसो था ऐसा। अच्छा, स्क्रीन शेयर मुंहिंजी मुंहिंजे ख्याल में ओपन आहे, बाक़ी ओपन आहे, रिकॉर्डिंग रुगो open। रिकॉर्डिंग क्या। जी सर, नाउ चेक क्यों आने। हाँ सर, हाणे हलो आहे। जी प्लीज। तो स्टार्ट कयूं सर? प्लीज गो अहेड स्क्रीन सर, शेयर। प्लीज गो अहेड। थैंक यू, थैंक यू। जी, पेंसिल जिनके पास थी वो वीडियो में आ जाएं, इफ दे कैन इजीली। किसी के पास पेंसिल है तो वो आ जाएं। किसके पास पेंसिल है इस वक्त? जी, आदिल आपके पास है मौजूद? ओके, तो अब मैं प्रेजेंटेशन पे भी बताता जाता हूँ, वो देखना। आप ऐसे करें, इस पेंसिल को जो है ना वो तोड़ दें, पैसे मुझसे ले लेना, ठीक है, उस पेंसिल के। जिनके पास है वो थोड़ा तोड़ दें, उसे बीच में से तोड़ दें। अगर तोड़ दिए तो वो दिखा दें। जी हाँ, सुनकर एक्सपेरिमेंट करें। हाँ, ओके।
आदिल आप दिखा रहे हैं। अब देखें इसमें से मैसेज क्या है कि पहले आपके पास एक पेंसिल थी, मतलब एक तरफ से आप लिख पा रहे थे, जिंदगी मतलब आपने पेंसिल को तोड़ दिया। ऐसे ही आपकी लाइफ है, मतलब जिंदगी कोई आपको जब मुश्किल वक्त देखती है, ऐसे समझिए जिंदगी आपको बीच में से तोड़ रही है। आप कहते हैं ना जिंदगी ने तोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, तो एक्चुअली जिंदगी तोड़ नहीं रही, वो आपको वो वरी नजर आ रही है, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी होती है। तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर वरीज इनटू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अब पेंसिल के दो हिस्सों से आप उसको शार्पन करके लिख सकते हैं। पहले एक जगह से लिख सकते थे, अब किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आधा ऐसा किसी और को देंगे तो वो भी लिख पाएगा और आप भी लिख पाएंगे। समझ आ रही बात? तो वरी is converted into opportunity now. The very first message from pencil. Another message क्या है? देखें, हमेशा पेंसिल के पीछे मतलब अक्सर पेंसिल्स में आप देख रहे होंगे कि इरेजर होता है मौजूद। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप मिस्टेक्स, यू कैन नॉट अवॉइड द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स तो होनी ही होनी है, हर बंदे से होनी। रबड़ इसलिए दिया गया है उसमें, इरेजर इसलिए दिया गया है कि यू कैन इरेज योर मिस्टेक। मतलब ये तो बात तय है कि आपसे मिस्टेक होनी है, लेकिन यू हैव अ टूल टू इरेज दैट मिस्टेक, तो आपको वो इरेज करनी है। तो जिंदगी में आपसे मिस्टेक्स होनी है, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई मिस्टेक हो जाए, कहीं कोई फेलियर हो जाए, उसको खत्म करना है, इरेज करना है, ठीक है। यू कैन नॉट अवॉइड द मिस्टेक्स। उस पर बैठ के रोना शुरू नहीं करना कि मुझसे ये गलती हो गई और मैं फेल हो गया, नो इशू, ठीक है, मूव अहेड, आगे चलें। ये दूसरा लेसन था पेंसिल से। थर्ड लेसन क्या है? देखो, पेंसिल आप नहीं खरीद के आते हैं और आपके पास शार्पनर नहीं है, आप लिखना शुरू करें, विल यू बी एबल टू राइट? यू वोंट बी, आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पेंसिल बेकार है अगर वो शार्पन नहीं होती, क्योंकि उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो इनसाइड है। तो आपकी भी जो रियल स्ट्रेंथ है दैट इज इंटरनल, दैट इज इनसाइड यू, इंटरनल मोटिवेशन, ब्रिंग दैट आउट। जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो आपकी रियल स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। एक इंग्लिश की बड़ी मशहूर कोटेशन है कि मेन आर लाइक टी लीव्स, इंसान चाय की पत्तों की तरह होते हैं, दे गिव कलर इन हॉट वाटर, वो गर्म पानी में अपना रंग छोड़ते हैं। चाय के पत्तों को आप ऐसे करें, ठंडे पानी में डाल दें, कितना रंग छोड़ेगा बताएं? असर छोड़ेगा? टेस्ट होगी? रंग होगा? नहीं होगा ना। तो आप भी जिंदगी में अपनी रियल स्ट्रेंथ लेके आएंगे, और जब आपको मुश्किल वक्त मिलेगा, इसका मतलब ये है। और उसके लिए द फोर्थ लेसन इज दिस, कंटिन्यूअस शार्पनिंग मेक्स यू वैल्यूएबल। जिंदगी आपको शार्पन कर रही है, लगातार शार्पन करती रहती है, ठीक है। जिंदगी आखिर तक आपको शार्पन करती रहती है, जैसे आप पेंसिल को आखिर तक शार्पन करते रहते हैं। और ये जब शार्पन कर रही होती है, मतलब जिंदगी आपको तकलीफें दे रही होती है, मुश्किलात दे रही होती है, वो आपको स्ट्रेंथ को जाहिर कर रही होती है, आपको प्रिपेयर कर रही होती है जिंदगी को, जिंदगी से अपना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। समझ आ गई बात? तो दीज आर द लेसन्स फ्रॉम पेंसिल वी हैव टू लर्न इन आवर लाइफ। उसके बाद एक और मिसाल देते हैं, जिराफ आपने देखा होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि देखें, एक बड़ी मशहूर स्टोरी है, वो हर जगह आपको मिल जाएगी, गूगल पे, यूट्यूब पे, जिराफ से रिलेटेड। जिराफ आपको पता है उसका कद कितना बड़ा है। तो जब उसका बच्चा पैदा होता है ना, तो 7 और 8 फीट की ऊंचाई से वो बच्चा गिरता है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, या हम जैसे पैदा होते हैं, तो हमें कोई उठाने के लिए होता है, हाथ में लेने के लिए होता है, अबू हो, भाई हो, कोई भी हो, राइट। तो जिराफ का बेबी जो है वो पैदा होते ही इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, चोट खा रहा है। तो वो पहले सोच रहा होता है कि यार मैंने अब जिंदगी में आया ही अभी हूं और पहले ही ये धक्का, राइट, एक धक्का ये। अब सोचना उसके साथ और क्या होता है। वो जिराफ सीधा होके, उसकी जो माँ होती है, वो उसी बेबी को किक लगाती है। सोचें, इट्स रियल, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अपनी ही माँ अपने पैदा हुए नए बच्चे को किक लगा रही है, पहले ही उसने चोट खाई है, इट किक सर। अच्छा, वो जब मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। किक लगाती है, वो अभी क्योंकि वो कमजोर होता है ना, बच्चा जैसे पैदा होता है, वो इवन बैठ भी नहीं, अपना खड़ा नहीं हो सकता, अपनी टांगों पे बैठ नहीं सकता, उसकी टांगें कमजोर होती हैं। तो एक चोट वो लगी, वो पहले ही कमजोर, फिर दूसरी किक लगी, उसके बाद वो फिर जिराफ मदर आती है उसके पास,
फिर दूसरी किक लगा दी है। तो वो बच्चा सोच रहा होता है भाई मैंने क्या किया, अभी तो जिंदगी में आया था, अभी से ही माँ किक पे किक लगा रही है, क्या करना है मुझे, मतलब माय मदर वांट्स मी टू डू समथिंग एक्चुअली। तो उसके माइंड में ये मैसेज जाता है, थॉट आती है, तो वो बच्चा अपनी इस वोम्बिल और कमजोर टांगों से उठने की कोशिश करता है, राइट, और वो उठ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी माँ आती है, फिर उसे लात मारती है थर्ड टाइम। फिर वो बच्चा दौड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझता है शायद मेरी माँ सिर्फ इसी में खुश नहीं है कि मैं उठ जाऊं, वो चाहती है कि मैं थोड़ा भागूं, मैं थोड़ा चल सकूं। हम नहीं चल पाते पैदा होते, जिराफ का बच्चा पैदा होते चल रहा है। अब मैं बताऊं क्या है, होता क्या है, ये जो टाइगर और लायंस हैं उसका फेवरेट मीट जो है ना वो जिराफ की बेबी का है, एंड द मदर नोज दैट। तो मदर को पता है कि अगर मैं कहीं इधर उधर चली गई तो लायन विल ईट माय बेबी, क्योंकि वो नहीं चल पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो शी वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग हर किड फॉर दैट टाइम, फॉर दैट चैलेंज। तो भाई सोचो, ये जो जिंदगी है ना वो भी इस जिराफ माँ की तरह है, आपको किक पे किक लगाती जाएगी, एक किक, दूसरी किक, तीसरी किक, और इनसे परेशान नहीं होना। ये चैलेंजेस आपके लिए किक्स हैं जिराफ की। तो एंड यू आर अ बेबी जिराफ, और जब आप खड़े हो जाएंगे फिर वही मदर बेबी जो है ना वो अपने बच्चे को जाके किस करती है। तो दैट किस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, राइट। तो ये लेसन हमने सीखना है जिराफ की स्टोरी से। दूसरा मिसाल देता हूं, ये क्या है, एंट। अब मैं एंट के लिए एक चीज बताता हूं आपको, ऊपर पढ़े। एंट्स के लिए एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि एंट्स कैन लिफ्ट अप टू 5000 टाइम्स ऑफ देयर ओन बॉडी वेट, जिसका मतलब ये हुआ कि दे कैन एंड्योर, दे कैन विथस्टैंड प्रेशर 5000 टाइम्स मोर देन देयर ओन वेट ऑफ द बॉडी। मुझे बताएं आपको या मुझे कौन सी मुश्किल पड़ती है, मैं कितना वेट उठा सकता हूं? मैं अपनी बॉडी से भी कम वेट उठा के भी थक जाता हूं, ऐसे ही होता है। तो एक्चुअली इसका मतलब है परस्यू योर बिग ड्रीम, नॉट आस्क इज टू बिग फॉर यू। भाई एंट कर सकती है तो मैं नहीं कर सकता यार, इतना तो सोचना चाहिए ना। एक छोटी सी एंट कर पाती है, व्हाई कांट आई, राइट। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी, मैंने एक किताब पढ़ी थी, एकार्ट टोले की किताब है द पावर ऑफ नाउ, बड़ी खूबसूरत किताब है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना, बड़ी खूबसूरत किताब है द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोले। तो उसकी अपने किताब में एक स्टोरी आती है जो मैंने यहाँ पे फोटो में रखी हुई है। यू आर लाइक अ बेगर सिटिंग ऑन अ बॉक्स फिल्ड विद गोल्ड। एक बेगर था, उसको कहीं से एक बॉक्स मिल गया, उसने कहा ये बेकार है, कचरे में बॉक्स पड़ा हुआ है। उसने उसको लिया तो सही, उठाया तो सही, लेकिन ही ओनली यूज्ड इट फॉर सिटिंग पर्पस। उसने कहा ये कचरे में मिला है, इसमें क्या होगा, ठीक है। तो उसने उस बाग पे बैठना शुरू करके फिर अपना वही बैगिंग शुरू कर दी। और वो जब बैगिंग कर रहा था, हैदर साहब वॉइसेस आ रहे हैं, उसको साइलेंट सबने म्यूट करो। अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ओके। बिल्कुल आ रही। तो वो जो किताब है मैंने स्टोरी पढ़ी वो ये थी कि वो बच्चा जो बेगर है उसने कहीं कचरे से एक बॉक्स उसे मिला, उसने कहा ये कचरे में बेकार चीज पड़ी हुई है, चलो मैं इस पे बैठ के बैगिंग करूंगा। तो वो बैठ के बैगिंग कर रहा था, एक बंदा उसके पास आया, उसने कहा कि भाई अपना, उसने कहा मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे जरूरत है। बेगर ने कहा, तो उस बंदे ने कहा यार तुम्हारे बॉक्स जिसमें बैठे हो इसमें क्या है? उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही कचरे में पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया है बेचने के लिए। उसने कहा कभी खोला? उसने कहा नहीं खोला तो नहीं है, अभी कचरे में पड़ा हुआ, क्या खोलूं इसे? उसने कहा खोल के तो देखो। उसने कहा चलो ठीक है खोल के देखता हूँ। वो जब खोलता है तो इट इज फिल्ड विद गोल्ड। दिस इज आवर स्टोरी, ये हमारी स्टोरी है। हमारे अंदर भी हम एक बॉक्स की तरह हैं, हमारे अंदर गोल्ड पड़ा होता है, सॉरी हम इस बेगर की तरह हैं, और हमारे अंदर एक ये बॉक्स पड़ा होता है गोल्ड का। हम उसको ऐसे ही घूम के
फिर रहे होते हैं, लेकिन कभी उसको खोल के नहीं देखते। योर इनसाइड इज दैट बॉक्स ऑफ गोल्ड, प्लीज ओपन इट, दैट इज योर स्ट्रेंथ, राइट। आगे चलते हैं। Now my session regarding presentation completes here, और now अब आप पे है कि आपके जहन में जो भी सवाल आते हैं CSS से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। हैदर साहब। जी, thank you so much, Ayaz Saab. It was again, as I said, it was wonderful, comprehensive, and very informative lecture and discussion. I think Thank you for everyone appreciation. everyone has now been feel quite motivated now. लेकिन क्योंकि आप जैसे इंशाल्लाह। आपने खुद कहा कि एक वसी एक फिनोमेना है, कंप्लीट साइंस आई वुड से, तो उसमें सबसे जो Right. पहली चीज रिक्वायर होती है वो मोटिवेशन रिक्वायर होता है। आई थिंक जो पहला Right. पार्ट था वो तो आपने बड़ा उसका बड़ा इंसाफ किया, और हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन भी हुई कि नाउ एवरीवन फील क्वाइट मोटिवेटेड नाउ। लेकिन जो उसका Right. सेकंड जो एस्पेक्ट है वो भी हम होगा कि कुछ जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग स्टडी या रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, तो काफी सवाल आ रहे थे, और मेरा मेरा भी ये सवाल था कि हम किस Right, किस sir. तरीके से, व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी, किस तरीके से हम प्रॉपर टाइम मैनेज करके और किस फार्मूले के तहत हम स्टडी करें जिसमें हमें अच्छे मार्क्स भी मिले और हम उसमें हमारे फेल्यूर का चांस भी कम हो जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर Sure, आप sir. सर। Sure, sir. Thank you for appreciation and मैं अभी आपके सवाल पे आता हूँ सर। अच्छा, कमल, मैं आपके सवाल पे भी बाद में आता हूँ। पहले हैदर साहब का सवाल जो एक्चुअली आप लोगों को सबका सवाल है, ठीक है। वो सवाल ये है कि हमने पढ़ना कैसे, घर पे स्टार्टिंग कैसे करनी। अब देखें, मैं सिंपली आपको बता दूं एक आसान तरीका कि वो ये है कि भाई आपके पास एक गिवन सिलेबस है 12 सब्जेक्ट्स का, 6 आपके कंपल्सरी, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है ना, आप गाइडेंस लेके फिर आप करना, ठीक है। आप मुझसे भी ले सकते हैं, मतलब आई डोंट हैव एनी इशू, आप मुझे अप्रोच करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है, इंडिविजुअली जो CSS की तरफ आना चाहता है, ठीक हो गया। तो इनका सिलेबस देखें। अब आप देखेंगे सिलेबस चैप्टर वाइज डिवाइडेड होता है। पहले तो आप जो अपना रजिस्टर बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का, उस सिलेबस की कॉपी निकाल के उस रजिस्टर पर लगा लें, पहले पहले पेज पे। अब उसमें फॉर एग्जांपल इस्लामियात है, एक मिसाल देता हूँ। इस्लामियात का सिलेबस है, उसमें 7 चैप्टर है। एक चैप्टर है लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, सीरा ऑफ होली प्रॉफिट, सेकंड चैप्टर उसमें आता है। अब उस चैप्टर में अपना टॉपिक्स आपको काउंट करने हैं कितने। उसमें लिखा हुआ है होली प्रॉफिट एज अ डिप्लोमेट नंबर 1, एज एन एजुकेशनिस्ट नंबर 2, एज एन इंडिविजुअल नंबर 3, और एज एन डिप्लोमेट नंबर 4, और एज एन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, सॉरी डिप्लोमेट रिपीट हो गया, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नंबर 4, और उसके बाद पीस मेकर नंबर 5। तो देयर आर 5 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। आपको अब करना क्या है, सजेस्टेड बुक रीडिंग्स होगी जो मैं भी आपको दे दूंगा। अगर आप मुझसे अपना कभी इंडिविजुअली बाद में मुझसे पूछ लेना, मुझे अप्रोच कर लेना सर इधर के थ्रू, ठीक है। तो आई विल बी गाइडिंग यू बुक्स के लिए भी। अभी आपने क्या करना है, उन एक एक टॉपिक को लें, किताब में से पढ़ें। किताब से पढ़ने वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, एक काम आपको करना है, उसके नोट्स बनाने हैं उसी रजिस्टर में अपने में, उस सब्जेक्ट के पॉइंट अपना पहले डिटेल नोट्स बनाएं, बाद में पॉइंट नोट्स होंगे, पॉइंट फॉर्म नोट्स। अब डिटेल नोट्स ये है कि उस सारे बुक को रिप्रोड्यूस तो नहीं करना ना, उसमें से चीजें निकाल के अपनी लैंग्वेज में लिखते जाएं, हेडिंग्स सब हेडिंग्स के साथ जो आपने वहीं पे समझा है। फिर एक और काम करना है, वो ये है कि पास्ट पेपर्स में जाएं। फॉर एग्जांपल ये इस्लामियात के सिलेबस में पहले चैप्टर नहीं हुआ करता था, 2016 से सिलेबस नया आया है, तो 2016 से इस चैप्टर में से सवाल आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, 2016 से 2020 तक जो पेपर हुए हैं उसमें से फाइंड आउट करो कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपने पढ़ा था मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। साबिर हुसैन योर व्हाट्सएप, श्योर, मैं सर हैदर साहब को कह दूंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप नंबर। तो आपने क्या करना है, वो जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक उठाया हुआ है, आपने किताब से भी पढ़ लिया है, अब देखेंगे क्वेश्चन पेपर में क्या आ रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की कोई ऐसी एरिया इस टॉपिक के बारे में आ रही है जो किताब में कवर ना हुई थी आपकी पढ़ते हुए, देन यू हैव टू फाइंड इट ऑन गूगल। इट्स वेरी सिंपल, गूगल पे लिख लें, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, या कोई एक और किताब देख लें, ठीक है। 1 बुक रीडिंग इज एसेंशियल, उसके बाद दूसरा जो है ना, आपको हेल्प जब चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको फॉलो करना है। लेकिन रिमेंबर दिस, वो जो आपने सवाल की एंगल कवर कर ली, तो अब आप समझ लें आपका सिलेबस भी कवर, पास्ट पेपर एनालिसिस भी कवर। उसके बाद भी एक और काम होता है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाएं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको सॉल्व करें और किसी टीचर से चेक करा लें, ताकि पता चले कि आपको पेपर टेक्निक्स आ रही है या नहीं आ रही।
ठीक है, करीमदाद चुगताई बुक, ठीक है, वो भी बुक बड़ी फेमस बुक है आजकल सी इस्लामियात की, लेकिन मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बाद में गाइड कर लूंगा बुक्स में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा ना एक एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हमने पढ़ना है, ठीक। लेकिन दूसरी चीज जो घर पे करनी है, ये तो पढ़ने का स्टाइल मैंने बता दिया। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि दे स्टडी विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लान। वो नेपोलियन बोनापार्ट की एक मशहूर कोटेशन है, वो कहता है वन हु डज नॉट प्लान, वन हु डज नॉट प्लान ही प्लान्स टू फेल। जो दरहकीकत प्लानिंग नहीं कर रहा होता, वो प्लानिंग कर रहा होता है अपने फेल्योर की, ठीक है। अक्सा पूछ रही है 18 घंटे पढ़ना है, नहीं नहीं भाई इतना नहीं पढ़ना, 8 घंटे पढ़ लें, दैट्स इनफ, इनफ, राइट। 8-10 घंटे पढ़ लें, इनफ है। इफ यू हैव अ 1 ईयर टाइम अराउंड, अगर आखिरी 2-3 महीने हैं, फिर आप 10-12 घंटे पढ़ लेंगे। 18 घंटे पढ़ने में आप ये देख लें, बायोलॉजिकली देख लें या साइंटिफिकली देख लें, आपकी मेमोरी में रिटेन भी नहीं होता है। मेमोरी में रिटेन वही होता है जो 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बी नेचुरल, वो जो बड़ा मशहूर नहीं होता था कि जो सीएसएस की तैयारी करते हैं उनके बाल लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो कमरे को ताला लगा देते हैं, ठीक है, खिड़की से जो है घर वाले उसको खाना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बी नेचुरल और बी नॉर्मल। नॉर्मल इंसान बनना है, एबनॉर्मल कभी भी नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, तो पढ़ने का अंदाज मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा था प्लानिंग पे। तो आपने प्लानिंग पहले ही बनानी है कि भाई मुझे, मेरे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने मंथ्स हैं जो स्टडिंग, और दिन में इतने घंटे हैं, और हर सब्जेक्ट को मतलब मैं डेली बेसिस पे कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, किस किस घंटे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उसमें से कौन कौन सा टॉपिक किस किस दिन में कवर कर रहा हूँ। ये पूरा चार्ट, पूरा प्लान पहले बना के रख लें अपने स्टडी टेबल पे, देन आपको जो है ना वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। हम मूड पे होते हैं ना, अभी ये किताब पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, तो हमारे माइंड में कोई रिटर्न नहीं होता। So this is how we have to start study. Any other question? जी सर, ये क्वेश्चन है अपना अपने डॉक्टर हम महेश साहब ने किया है, फैकल्टी मेंबर जो है, जी वो पूछ रहे हैं जी कि जी ऐसे में किस तरीके से अच्छी मार्क्स हम लें। ऐसे में वो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे में स्ट्रगल करते हैं, तो उसके हवाले से कुछ और अगर हमें बताना चाहें। सर, जरूर। अब देखें, ऐसे तो एक पूरा सेशन है पूरा, ठीक है। इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो वो मैं आपको गाइड कर लूंगा, लेकिन अब अच्छा, शॉर्ट आपका टाइम में मैं आपका उसमें शायद आपका कोशिश करूँ। यूट्यूब भी कुछ चैनल भी है, उसका से भी भले आप इन्फॉर्म कर दें ताकि वो आपको ज्वाइन करके राइट। सब्सक्राइब कर ले। द पैरागोन अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली बनाया हुआ है। वो इसलिए ही मैंने बनाया हुआ, उसका पर्पज ये है कि ताकि ऑनलाइन फ्री गाइडेंस स्टूडेंट्स को हम दे सकें, ठीक है। और उसमें मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स, मैंने इस्लामियात के भी लेक्चर छोटे छोटे रखे हुए हैं, वीडियोस बना रहा हूँ, सिंधी लिटरेचर के मेरे लेक्चर रखे हुए हैं, दूसरे फैकल्टी मेंबर के भी हम वहाँ पे लेक्चर रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे पे आ रहा था, देखें ऐसे में सबसे पहला पर्पज होता है पास होना, बाद में होता है स्कोर लेना, ठीक है। तो पहले आते हैं पास होने पे ना। तो बेसिक चीजें क्या होती है ऐसे में, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले योर राइटिंग स्किल्स, योर लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं ग्रामेटिकल, तो समझ लें आपके फेलियर के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। दूसरा, एक बंदा है, ही हैज गॉट एक्सेप्शनल स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इंग्लिश लिख रहा होता है, ठीक है। बट दूसरा जो फैक्टर उसमें काम कर रहा है वो है कंटेंट। भाई 10-12 ऐसे आ रहे हैं टॉपिक्स, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, उस एक टॉपिक में आपने जस्टिस करना है उस टॉपिक के साथ। आपको अगर उसके कंटेंट, आपका उस टॉपिक के बारे में रिच नहीं है, आपकी लैंग्वेज कितनी भी खूबसूरत हो, तो आप फेल हो जाएंगे। So the second aspect is content that, and third aspect is technical structure of essay. बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, ऐसे के हर पैराग्राफ में हेडिंग दे रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन की और बॉडी की और कंक्लूजन की, तो ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होती, तो लेआउट उसका सीखना चाहिए। और इंट्रोडक्शन की एक जो इंट्रोडक्शन एक स्पेशली पर्पस पैराग्राफ है, उसकी एक खास टेक्निक्स हैं कि भाई उसमें अपना हुक सेंटेंसेस कहाँ आएंगे, उसमें अपना थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीजें भी हमने ऐसे की सीखनी होगी, तभी हम पास कर पाएंगे, अच्छा स्कोर ले पाएंगे। तो ऐसे So this ऐसे was my brief answer. ऐसे भी हवाले से अगर मैं और कुछ बाद में कहना चाहूँ आपसे जी पूछूंगी कि ऐसे जी ऐसे सर। के हवाले से हम लैंग्वेज में हमें ग्रिप होना जरूरी होता है, या फिर ऐसे के हवाले से कुछ टेक्निकलिटीज होती है जिनको हम पढ़ के समझ के हम एक अच्छा राइटअप या अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। हैदर साहब, 3 चीजें जो जैसे मैंने बताई ना, कि लैंग्वेज एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज एक्सेप्शनल है, आप कंटेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे तो फेल हो जाएंगे।
लेकिन आपकी लैंग्वेज नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब यू मस्ट हैव करेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, बट सिंपल, आपके पास सिंपल लैंग्वेज है और करेक्ट है, ग्रामेटिकली कोई फ्लॉ नहीं है, एंड यू हैव रिच कंटेंट, तो आप पास हो सकते हैं। और अच्छा स्कोर है तो फिर राइटिंग स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेगी अच्छे स्कोर के लिए, पास राइटिंग होने के लिए। स्किल्स तो बड़ी अहम है, उस ऑप्शन को भी आप ये भी कहा, मैंने भी कहता हूँ राइटिंग स्किल अपने को इंप्रूव करें। बिल्कुल राइट तब कितना जी आपको अपना कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो भले आपको बॉम्बास्टिक आपने कहा कि लैंग्वेज नहीं भी हो, लेकिन यू शुड हैव ग्रिप ऑन लैंग्वेज, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सप्रेशन पे काम करेंगे तो वो खूबसूरत हो जाएगी। जी अच्छा सर, एक और सवाल काफी बार आ रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हॉले से सवाल बार बार आ रहा है कि उस हॉले से हम किस किस सेक्शन कैसे करें, बिकॉज कंपल्सरी तो हम हमें हर हाल में देने होते हैं, तो ऑप्शन चॉइस हमें पास चॉइस होती है कि हम एक वाइड रेंज सब्जेक्ट में से चॉइस कर सकते हैं, तो उसमें स्कोरिंग का भी एक पर्सपेक्टिव होता है, साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज या आपका एकेडमिक रिलेशनशिप भी उसमें होता है। तो आप क्या गाइड करेंगे कि हम किस तरीके से, किस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चॉइस करें और उसका अपना फायदा भी पहुंचे? जी ठीक है सर, मैं इनको एक्चुअली देखो, अब एक एक बंदे के एक एक ऑप्शनल पे तो डिस्कस नहीं हो सकता, क्योंकि जी बहुत ओवरऑल अच्छी है। ओवरऑल बाकी बताएं, मैं ओवरऑल ओवरऑल मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि हाउ टू ऑप्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, राइट। जी यस उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना होता है, ठीक है, कि जैसे आज की हमारी ऑडियंस का बैकग्राउंड क्रिमिनोलॉजी से है, राइट, तो आपने क्रिमिनोलॉजी तो जरूर लेना है, बैकग्राउंड राइट। सोशल साइंसेस, जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो एक्चुअली वो इनकी स्ट्रेंथ होगी, जैसे मैंने पहले बताया, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको टॉपर भी बना सकता है, आपको चॉइस शुरू भी दिला सकता है। वेरी गुड। तो और दूसरा ये होता है, लोगों का कुछ एटीट्यूड ये होता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ हो रही होती है आप उसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, उसी पे ज्यादा मेहनत करनी है, राइट, क्योंकि उसी से आप स्कोर ले सकते हैं, ठीक हो क्या। बिल्कुल। एक आपको एजुकेशन बैकग्राउंड देखना है, नंबर 2 आपको अपना एप्टीट्यूड देखना है। एप्टीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि देखिए, कुछ लोगों को साइंस की किताब पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को तारीख पढ़ने में मजा आ रहा होता है, ठीक है, कुछ लोगों को आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा होता है, तो आपको अपना एप्टीट्यूड देखें। कुछ को लिटरेचर समझ आ रहा होता है, तो उस एप्टीट्यूड को देख के आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 एक चीज आपको नोट करनी है कि हमारे यहाँ एक स्कोरिंग ट्रेंड की बात हो रही होती है। यस, अभी स्कोरिंग ट्रेंड वेरी करता रहता है, ठीक है। उसका एक मैं साइकोलॉजिकल रीजन बता दूं या नेचुरल रीजन बता दूं। देखो, ये स्कोरिंग ट्रेंड और कुछ नहीं होता, होता क्या है कि एग्जामिनर, आप सोचते हैं आप भी यूनिवर्सिटी के सर, मतलब आप असेसमेंट कर रहे होंगे जी स्टूडेंट्स जी की, तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम नहीं कहते हैं यार, कुछ खड़ूस टीचर होते हैं, जैसे एम इंग्लिश वालों के लिए सेंट यूनिवर्सिटी वाले बड़े किराए करते हैं कि उसमें भाई मैं ये उसमें तो मैं स्कोर देता ही नहीं। जी उसमें मैं भी एक ही हूँ सर। अच्छा, तो तो सर इसमें होता क्या है कि कुछ टीचर थोड़े सख्त होते हैं मार्किंग राइट, में, जी जी बिल्कुल। तो वो कम देते हैं। कुछ बड़े ओपन हार्ट होते हैं, वो कहते हैं यार चलो बच्चे ने लिखा दो, स्कोर दे जी दो। हाँ बिल्कुल, तो ये जो कैसे पेपर आप, ये जो आपके पेपर जा रहे होते हैं, कि यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर के पास ही जा रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल। फिर उसमें से डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर किस तरीके का है, ठीक। और दूसरा उसका कंटेंट भी है कि आपने लिखा क्या है, ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट पूरा लिखा और आपको स्कोर मिल जाएगा या पास हो जाएंगे, ठीक है, वो भी है। तो आपने ये एप्टीट्यूड, पहला एजुकेशन, दूसरा एप्टीट्यूड, और थर्ड है स्कोरिंग ट्रेंड। और स्कोरिंग ट्रेंड के लिए मैं आपको ये बता दूंगा कि पास्ट 10 ईयर्स के स्कोर ट्रेंड देखें किसी भी सब्जेक्ट का जो आप कर रहे हैं, उसमें देखें अगर आप 6-7 साल, मतलब मोर देन 50% उसमें स्कोर आ रहा है, मतलब 10 सालों में, 6-7 सालों में स्कोर दे रहा है, 2-3 सालों में नहीं दे रहा, तो यू मे गो फॉर दैट, राइट, क्योंकि उससे पता चल रहा है एवरेज वो अच्छा स्कोर दे रही है। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है। बाकी इंडिविजुअली जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट डिस्कस करने हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल बी गाइडिंग देम। ओके, थैंक यू। सो इसके अलावा सर ये थोड़ा हमें बताएं कि आप आपका जो बेसिकली जो पूरा ये लेक्चर था उसमें सीएसएस भी अहम था, उसके अलावा पीसीएस का भी था, तो जी ऑप्शन की बात करूंगा कि उसमें ऑप्शन का नंबर क्या होता है, मतलब हाउ वी कैन चॉइस ऑप्शनल, मतलब कितने हम कर सकते हैं सीएसएस में और कैसे हम कर सकते हैं पीसीएस में, इज एनी लिमिट? सर, वो जी 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 सर, हाँ मैंने वो शायद पहले डिस्कस भी किया था कि सीएसएस में 6 सब्जेक्ट, आप 600 मार्क्स के सब्जेक्ट ऐड करने होते हैं। अच्छे से उसमें मार्क। कोई 200 मार्क्स के भी होते हैं, कोई 100 मार्क्स के भी होते हैं। जी जी और दूसरा, उसमें ग्रुप्स बने हुए होते हैं सब्जेक्ट्स के, राइट, मतलब कोई हिस्ट्री के हैं, कोई लॉ के हैं, ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग होती है। तो हर ग्रुप के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ लिमिटेशन रखी हुई है कि इस ग्रुप में से आप सिर्फ 200 मार्क्स के ले सकते हैं, इसमें से 100 मार्क्स के ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भी पीसीएस में है, वहीं पे 4 सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं 100 मार्क्स के, 4 या लेकिन 3 वो है, 4 ग्रुपिंग लेने आपको होते हैं, देखनी होती 4 है। लेने होते हैं सर। बिल्कुल 4, बिल्कुल 4, 4। ओके, ठीक हो गया सर। इसके अलावा एक सवाल काफी बार आ रहा है कि हम, आदिल 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 लांगा सर सवाल पूछ रहा है, जीरो लेवल से हाँ कैसे शुरू करें। जी जी और इसी सवाल का मैंने पहले भी जवाब दिया, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें, पहले अंग्रेजी पे अपना काम करें, राइट, ठीक है।
और प्लस कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएं, उसके किताब लें, सिलेबस से जैसे मैंने आपको गाइड किया उसी तरीके से पढ़ते जाएं, एक एक चैप्टर देखें, चैप्टर के टॉपिक्स देखें, किताब में से पढ़ते जाएं, तो पास पेपर देखते जाएं, ठीक। और इंग्लिश पे क्या कैसे काम करें, जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको करना क्या है कि अपना रेन एंड मार्टिन एक इंटरमीडिएट लेवल की किताब है, बड़ी खूबसूरत और जबरदस्त किताब है, है इंटरमीडिएट की किताब, लेकिन 2018 का इंग्लिश का पेपर उसी में से आया हुआ था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी उसी में से आई हुई थी, ठीक। तो आपको करना क्या है, उसमें भले आपकी अंग्रेजी अच्छी हो या बुरी हो, आप उस पे किताब को पूरा एक मरतबा कवर कर लें, 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज सॉल्व करें, की अलग से बुक आती है, की में से चेक करें, इफ मोर देन 80-90% आपने ठीक लिखे हुए जवाब, तो समझे आपने चैप्टर समझ लिया, मूव टू द अदर, ठीक है। अगर उसमें से आप कम ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब आपने चैप्टर नहीं समझा, उसको दोबारा उसी किताब में से पढ़ने की कोशिश करें, ना समझ आए तो कहीं और से यूट्यूब से या गूगल से पढ़ के फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें एंड देन मूव ऑन लाइक दिस। इस तरीके से आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रेसी राइटिंग हॉल से भी कुछ आप बताएं अगर इस हवाले से। जी, देखो प्रेसी क्या होती है, प्रेसी राइटिंग एक समराइजेशन होती है, उसमें आपको एक पैसेज दिया गया होता है और एग्जामिनर डिमांड कर रहा होता है कि आपने उसमें से इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीजों को अलग करना है, इंपॉर्टेंट चीजें अलग करके मुझे लिख के देनी है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जब आप ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, मतलब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर बन रहे हैं, मतलब ऑफिस वर्क कर रहे हैं कोई भी, तो मोटी मोटी इतनी मोटी मोटी फाइल्स आ रही होती हैं आपको, जो हमने अभी जॉब में आके एक्सपीरियंस किया है कि प्रेसी का फायदा क्या है। तो इतनी फाइल्स को अब जब आप अपने बॉसेस को बता रहे होते हैं तो आप उनको प्रेस ही करके दे रहे होते हैं, उसको नोट शीट में पुटअप करते हैं हम यहाँ पे। तो उसका एक प्रैक्टिकल फायदा ये है। अब उसकी टेक्निक्स में थोड़ी सी ये बता देता हूँ कि देखें, उसमें इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब एक ओपिनियन होता है किसी न किसी पैराग्राफ में जो भी पैसेज दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट ओपिनियन होता है और उस ओपिनियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट्स की एक्सप्लेनेशंस होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स निकाल देनी है, मेन आर्ग्यूमेंट्स उस ओपिनियन से रिलेटेड अलग करके रखनी है। यही है सर प्रेसी के बारे में। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, एक और सर सवाल है, ये मतलब बड़ा क्रिटिकल सवाल है इस हवाले से कि इस वक्त जैसे मैं आपको कहा था कि इस वक्त काफी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन और मुख्तलिफ एसपीएससी के इम्तिहान क्लियर किए हैं, तो पीसीएस जी सर। शायद नहीं, पीसीएस शायद होगा। तो इंटरव्यू हवाले से बात करें कि इंटरव्यू में क्या स्किल्स बेसिक होनी चाहिए जिससे हम पैनल को सेटिस्फाई कर सकें, एक अगर उसको आप जर्नलिस्ट को थोड़ा एनालाइज करें कि वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकते हैं इंटरव्यू में अपीयर होने की। देखो सर, इंटरव्यू में ये होता है कि इंटरव्यू आपकी एक्चुअली नॉलेज का एग्जाम नहीं होता, नॉलेज आपकी असेस पहले ही की जाती है आपके रिटन एग्जाम में, ठीक है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, राइट। उस पर्सनालिटी में आपका वो बिहेवियर देखते हैं कि कितने कर्टियस आप हैं और हाउ यू आंसर। एक्चुअली व्हाट यू आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू आंसर इज इम्पोर्टेंट। व्हाट यू आंसर भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे ना हो कि गलत जवाब दें, लेकिन मतलब ये है कि उसका तरीका क्या है आपका अपना आंसर करने का। मैं आपको बता दूं, आंसर इंटरव्यू में सॉरी डज नॉट मैटर। इफ यू डोंट नो समथिंग, सिंपली से सॉरी रादर बीटिंग अबाउट द बुश। कुछ लोग करते हैं, नहीं सर अपना इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और एग्जामिनर के साथ जिद करते हैं। तो भाई अगर आपको नहीं आ रहा से सिंपली सॉरी। और एग्जामिनर, मैं आपको बता दूं, मेरा 2013 जब मैं फर्स्ट पोजीशन आई थी रूरल में, उस इंटरव्यू में मेरा 178 था। तो उस वक्त मुझे याद है कि अराउंड 10 to 50 क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड सेकंड में पूछ लेते हैं, तो टोकन क्वेश्चंस जैसे हम कहते हैं, मैंने उसमें सॉरी किए थे। इवन देन आई गॉट 178 आउट ऑफ 250, बिकॉज जो आप जवाब दे रहे हैं उसको किस तरीके से बता रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो चीजें मेंशन करती हैं। पर्सनालिटी में आपकी फिर गेटअप आ जाता है, आपकी एंट्री आ जाती है, आपका सिटिंग पोस्चर आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ रही होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। Okay, so thank you so much, sir. I think session is quite very good, informative. I think इसको wind up करते हैं. We had already had a 3 session. अच्छा, तो फिर सर आप अगर कंक्लूड करना चाहें इसी बारे में कुछ और तो फिर कुछ you can। अच्छा, बस मैं आखिर में ये कह देता हूँ हैदर साहब के, मेरी एकेडमी जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ दूसरे दोस्तों के साथ, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए और आपके स्टूडेंट्स क्रिमिनोलॉजी के लिए, ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इनके लिए एक अपना जो है स्कॉलरशिप पेपर कंडक्ट करा सकता हूँ, ठीक है, ताकि उनको जो नीडी लोग हैं वो स्कॉलरशिप पे आके ऑनलाइन सेशन जो हमारे चल रहे हैं आर्टिकल्स में, लेकिन वो बायस हो सकते हैं, प्रेजुडिस रख सकते हैं,
किसी चीज को लिमिटेडली देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसे कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, और इसी तरीके से आपको डेवलप करना होगा कि हर एस्पेक्ट को पढ़ना है किसी टॉपिक के। जी, ये बड़ा सर बड़ा सर अहम बताया साहब ने कि आप जितना अपनी स्टडी में डाइवर्सिटी और एक लाएंगे, उतना ज्यादा आप ज्यादा लर्न करेंगे। हम स्टूडेंट यही करते हैं कि वो एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसी सोर्स पर रिलाई जी करते हैं, ओपिनियन को बिल्ड करके फॉर्म करते हैं। तो हमें ब्रदर, होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। जी शान यस सर, जी भाई, ओके यस सर, आपने बहुत थैंक अच्छे यू, से इसको जो है वो आंसर किया है, थैंक समझ यू, आ गया है। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। जी हाँ साहब, कंक्लूड करें प्लीज। जी सर, बस यही था। मैं आखिर में ये कह रहा था कि क्योंकि यू आर अ गुड फ्रेंड टू मी एज वेल, और आपके स्टूडेंट्स जो हमारे क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और बनने वाले हैं, इनके लिए कि इन जो कर गए हैं और जो कर भी रहे हैं, उन दोनों के लिए, इफ दे वांट टू रियली कम फॉर सीएसएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मेरी एकेडमी के लिए मैं अपनी तरफ से एक ऑफर दे रहा हूँ। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बात कर लूंगा कि इनके लिए एक स्कॉलरशिप पेपर कंडक्ट किया जाए, ताकि इनमें से जो नीडी हैं, ताकि वो उसको अवेल कर सकें और सीएसएस की तरफ आ सकें। जी तो वो अगर थैंक आप यू जब भी कहेंगे, कोई टाइम सेट करेंगे, वो कर लेंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेशियस वेलकम, अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर। वेलकम सर, वेल थैंक यू वेरी मच सर। कैंडिडेट्स, आपको बड़ा अच्छा आपको मौका है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन गेट एडमिशन एनरोल्ड इन योर एकेडमी, पैरागन एकेडमी। अगर आप यू हैव फाइंड यू शुड लाइक स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए, और यू आर नीडी, देन एज साहब हैज ऑफर्ड यू दिस अपॉर्चुनिटी कि वो इंशाल्लाह मैं से हफ्ते में हूं, विल आई विल गोइंग टू गिव यू द पर्टिकुलर डेट। तो उसी पे डेट के हवाले से फिर हम आपको ब्रीफ करेंगे किस तरीके से आपको किस स्पेस में अपीयर होना है। तो उसमें इफ यू क्लियरली वेलकम टेस्ट अमीर शाह, जी, तो फिर then you will give a scholarship as well. जी, थैंक यू सर। thanks so much sir, It thanks was so much, really nice to have you all here. Thank you. thank you. I think again I will appreciate you, and I Thank think you, your sir. wonderful effort, and it is very comprehensive. Welcome, And Gulshan. all of the Welcome, students, Arisha. I feel from their body language and their involvement, with the That's number of great, sir. candidates very much there from first session to the last session. Each and everybody they are participating. I feel that now वो spark जो मैं बात कर रहा था, वो spark शायद अभी नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। इंशाल्लाह बस ये आज से तैयारी शुरू कर लेंगे। चला, ऐसे नहीं हो कि हमें ओके। क्रिमिनोलॉजी भूल जाए, तो नहीं नहीं नहीं, क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी जरूर करें, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी आपको आगे जाके करियर में बड़ा हेल्प करेगी। क्रिमिनोलॉजी के लिए आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी, पुलिस डिपार्टमेंट में और अन्य सब में। सर हमने सर क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट सर इसलिए ज्वाइन किया है सर इसके लिए। हाँ, और यू आर लकी इनफ टू हैव सर हैदर देयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Okay, as up, thanks so much. I think we should be Thank you, concluding sir. session. Okay, Thank you, on a thank very you. high note, Allah again, I extend my thanks on behalf of my faculty and all the students. Jazakallah, Okay, sir. inshallah, Jazakallah. we'll continue with such sort of session. It's one of the session. Inshallah. Inshallah, continue with such Inshallah. other activities. Inshallah. Okay. Inshallah. Thank you. Allah Hafiz, Allah thanks so Hafiz. much. God bless you all. Allah Hafiz. थैंक यू सर, थैंक यू।